Hello everyone, very good evening to all. I hope I am audible, right? Yes, maybe, no. Yes, you are audible. Great. Yes, Himanshu, you are audible. Yes, Thanks guys and very happy new year to all. So this is our first class in 2021. So let's see ये वाला साल कैसे जाता है. And I hope the students who belong to Jan 2020 they have submitted their assignments and also they have filled the examination form. If not, then the date has been extended till 7th of Jan for examination form, and then for submission of assignment, you can submit your assignment till 15th of Jan. तो नहीं किया है तो प्लीज कर दो. बहुत बार डेट एक्सटेंड हो गई है, मुझे तो लग भी नहीं रहा था अब की बार होगी. सो जो भी रह गया है प्लीज सबमिट कर दो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दो. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. असाइनमेंट बनाने में भी तुम 2 दिन में 3 दिन में बना सकते हो अगर चाहो तो. So that's the main priority for all of us. Please submit your assignments and fill the examination form. Then only there is a benefit of taking online classes. अगर तुमने examination form ही fill नहीं किया है तो class लेने का क्या फायदा है? So right now we have 8 people in this meeting. So we'll start the session. So today's session will be the statistical methods for psychology, and प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स. क्या क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का. सो एज वी ऑल नो, अगर नहीं पता है तो आई विल गो एंड आई विल स्टार्ट विद अ स्मॉल रिकैप फॉर द प्रीवियस सेशन सो दैट एवरीवन विल गेट रिफ्रेशमेंट. So introduction to statistics, we have studied about the meaning of statistics, where we studied about the meaning and the definition of statistics and the concept in statistics. What is the basic concepts in statistics? And then we have learned about the role of statistics in research. And then we came to know about the limitation and the misinterpretation of statistics, and then scale of measurement, and then descriptive and inferential statistics. So this is what we have studied in the earlier classes. So एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ statistics क्या होती है. Statistics होती है, this is the branch of study, or you can say it is a branch of science where we deal with the observations, data, and we try to collect the data from the observation, and then we what we do, we organize the data in the meaningful pattern, and then we try to compute them, we try to measure them, and then uh, we try to come to the conclusion where we can take decision as per our data collection. तो statistics में mainly हम क्या करते हैं, डाटा को collect करते हैं, organize करते हैं, उनको measure करते हैं, उनके बाद उनको calculation करके हम एक meaningful decision पे आते हैं कि ये हमने जो डाटा collect किया है, इस डाटा से मुझे ये information मैं collect कर पा रहा हूँ. So this is basic definition of statistics. एंड फिर अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा यूनिट 2, वेयर वी विल डील अबाउट द डाटा रिप्रेजेंटेशन इन स्टैटिस्टिक्स, कि हम डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, और टेबल बनाते हैं तो डाटा को कैसे डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं उनको, और क्या ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. सो ये हमारे मेनली टॉपिक्स रहेंगे आज के. So as we know the meaning of the statistics, so हम साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन तो यही आती है, क्वेश्चन यही आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि once we will complete the psychology course and then we go for the higher studies in psychology, and once we will complete all the courses, or you can say once I will be eligible to go for any job based on the psychology course which I have studied, तो हमें वहां पे करना क्या है, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हमारा मेनली काम यही रहेगा साइकोलॉजी की. फिर अगेन बिकॉज इसलिए मैं बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए, क्योंकि एवरीथिंग इज बेसिक. अगर बेसिक है तो तुम्हारा सब क्लियर है. अभी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, अगेन साइकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे यूज में आती है कि साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. So once we will complete our study in psychology, our job role, you can say the job role, which we will get once the study will be done, we will get a job role where we need to study the human behavior, right? तो जब human behavior में study कैसे करूंगा, human behavior अब दोबारा से वही आ जाती है यहाँ पे लिमिटेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. लिमिटेशन क्या आती है स्टैटिस्टिक्स की, कि मैं कभी भी कोई भी डाटा ऑब्जर्वेशन या कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्ट, कोई भी ह्यूमन बिहेवियर का फैक्ट मैं एक एक पर्टिकुलर पर्सन से नहीं कर सकता, राइट?
मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को स्टडी करके कोई भी ह्यूमन बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैं बता सकता कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है। अगर मुझे कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर बनानी है या मुझे कलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक डाटा चाहिए जहाँ पे एक पर्सन नहीं होगा, जहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे या फिर बहुत सारे पॉपुलेशन होंगी। पॉपुलेशन मैंने बताया था, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, पॉपुलेशन मीन्स जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सैंपल पॉपुलेशन होगा तभी हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। एक पर्सन पे अगर मैं स्टडी करूंगा तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। So once I will complete my psychology course and once I'll be in with any job role with psychology, then my main work is to collect data, to observe the data, and then came to a conclusion कि what is the human behavior or what is the conclusion based on the data collection, कि मेरे पास जो भी data collect है, जो भी मेरे पास observation है, उसके behalf पे मैं क्या observation अपनी बना सकता हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ कि human behavior या फिर जो इस डाटा के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उनके पे मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ, क्या फिर ऑब्जर्वेशन बना सकता हूँ या क्या फिर परसेप्शन बना सकता हूँ, राइट। तो ये हम बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का यही यूज है। स्टैटिस्टिक्स द मेन, यू कैन से मेन कोर्स अंडर साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी सब कुछ पढ़ने के बाद तुम्हारी बायो साइकोलॉजी 103 जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सोसाइटीज कल्चर है, बायो साइकोलॉजी है, और हमारे और भी कुछ सब्जेक्ट्स थे। तो सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, पूरा साइकोलॉजी कोर्स करने के बाद, मास्टर करने के बाद हमारा काम क्या होगा? हमारा काम बेसिकली यही होगा कि अब पढ़ तो लिया सब, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ऑब्जर्व करना है, अब मुझे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मेरे पास डाटा होगा, राइट। तो ये डाटा को पढ़ने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, राइट। ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। जिसने अगर मैथ से पहले 10th 11th 12th पढ़ी होगी या उसके बाद अगर कुछ पढ़ा होगा, तो दे नो बेटर अबाउट स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को ही डील करते हैं कि डाटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उनमें एक मीनिंगफुल पैटर्न के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द यूनिट 2। तो मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ आपको, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, स्टैटिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन होती है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन वी हैव, इट इज अ साइंस इन विच द फैक्ट्स रिलेटेड टू सोशल इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड कंप्यूटेड। कंप्यूटेड मीन कैलकुलेटेड करना, उनको रिकॉर्ड करना और ऑब्जर्व करना। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, ठीक है। Organization of data, its classification, analysis are the processes involved in statistics. तो statistics में हमारे पास ये सब काम होता है। Then various events, phenomenon can be described, explained and compared with the help of statistics. तो statistics में हम mainly ये सब काम करते हैं, ठीक है। देन वी हैव पॉपुलेशन। मैंने बताया था, जो पूरी पॉपुलेशंस होती हैं जिसपे हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, या फिर एनिमल, कोई भी, ठीक है। जिसपे हम रिसर्च करना चाहेंगे उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। लेकिन एज वी ऑल नो कि पॉपुलेशन को स्टडी करना इट्स नॉट दैट इजी। हम पूरी पॉपुलेशन को जा जाके ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू, वी टेक अ सैंपल आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन, ठीक है। कि हम इस पूरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कि मेरे पास यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, तो मैं 1 लाख लोग को ऑब्जर्व करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ सैंपल आउट ऑफ दिस 1 लाख पॉपुलेशन। सपोज मैंने थाउजेंड्स लोग ले लिए, ठीक है। इन 1 लाख में से 1000 लोग मैंने सिलेक्ट कर लिए रैंडमली, और उन 1000 लोगों को मैं स्टडी करके देन आई विल कम टू ए कंक्लूजन। और मैं कहूंगा कि यस, अगर ये 1000 लोग अगर मुझे ये रिसर्च मुझे दे रहे हैं, ये कंक्लूजन दे रहे हैं, दैट मीन्स मैं इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसमें भी, कि मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम 1 लाख। ये देखो, ये इसका लिमिटेशन है साइकोलॉजी का, मैंने इसका सॉरी स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी का, कि मैं कभी भी स्टैटिस्टिकल साइकोलॉजी में जो मेरा कंक्लूजन आता है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंक्लूजन मैं पूरी पॉपुलेशन को अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने पूरी पॉपुलेशन को रिसर्च थोड़ी ना किया है, मैंने तो उसमें से सैंपल लिया 1000 लोगों का। तो 1000 लोगों से जो रिसर्च आएगा, देन मैं कह सकता हूँ कि यस, ये मेरा परसेप्शन है। अगर 1000 लोग अगर यहाँ पे ये सब चीजें पसंद करते हैं, देन ऐसा हो सकता है कि जो 1 लाख लोग पॉपुलेशन है, वो भी इसी मेंटेलिटी के होंगे, वो भी इसी ह्यूमन बिहेवियर के होंगे, वो भी यही सब चीजें क्या करेंगे, सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे। तो ये मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो ये हमारा सैंपल होता है। देन वी केम टू द देन द नेक्स्ट थिंग इज पैरामीटर। पैरामीटर वो होता है जो हम रिसर्च करते हैं, किस चीज की रिसर्च करते हैं, ठीक है।
तो पैरामीटर जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उस पॉपुलेशन की, ठीक है, ये हमारा बेसिक टर्म है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, वो हमारा जाता है पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स जो हम पूरे ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में फॉर्म करके उसको मीनिंगफुल पैटर्न में ऑर्गेनाइज करके देन वी व्हाट वी डू वी कंप्यूट द डाटा। और जब हम डाटा को कंप्यूट करते हैं, या फिर कंप्यूट मतलब पूरा कैलकुलेट करना, उनको मैथमेटिकल टर्म से अलग अलग चीजों को कंपेयर करना, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक्स के अंदर आता है। देन वी हैव वेरिएबल टर्म। वेरिएबल में हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, जिस चीज को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। सपोज इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सपोज आई हैव अ डेटा विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ओके, तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा है, एंड आई वांट टू calculate, or you can say I want to observe the scores फॉर द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अगर मैं उनका स्कोर कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज अ वेरिएबल। क्यों, वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल जो कभी भी फिक्स नहीं होता, जो हमेशा चेंज होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। और यहाँ पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के स्कोर वेरिएबल क्यों है, क्योंकि सबके क्या डिफरेंट स्कोर्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्लास में सबके स्कोर सेम ही आए हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। किसी के अगर आउट ऑफ 180 आए हैं, किसी के 70 आएंगे, किसी के 75, किसी के 89, तो ये क्या है, वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी अगर मैं स्कोर बोलूंगा देन इट इज अ पैरामीटर। एंड इफ आई जब मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता, जो हमारी पॉपुलेशन का जो हम डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज आती हैं जिनकी, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल वी हैव लॉट्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी भी हम डील करेंगे, क्वालिटेटिव क्वालिटी पे डील करेंगे। देन कंटिन्यूस वेरिएबल जो हमेशा कंटिन्यूस इन नेचर होता है, जो हमेशा बढ़ता रहता है, जैसे मैंने वेट का एग्जांपल दिया था। सपोज माय वेट इज 70 kg राइट नाउ, सो आई कांट से कि जब मैं 50 साल 60 साल का होऊंगा तब भी मेरा वेट क्या होगा, 70 kg होगा। तो वेट क्या है, इट्स अ कंटिन्यूस वेरिएबल जो हमेशा चेंज होता रहता है। देन वी हैव डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, जो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस इन नेचर होते हैं, जो हमेशा कंटिन्यू नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये सब कुछ टर्म्स थे, मैं बस आपको एक रिकैप दे रहा था स्मॉल, तो ये सब आप देख लेना। इसमें सिर्फ लिमिटेशन मैंने बता दी थी। देन वी हैव स्केल ऑफ मेजरमेंट, किस किस स्केल्स में मेजरमेंट करते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। देन वी हैव इंटरवल स्केल्स, रेशियो स्केल्स, ये सब मैंने बता दिया था, एक बार आप रीड आउट कर लेना अगेन। Then we have two types of statistics, descriptive and inferential statistics। तो मैं ये सब पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इन सब चीजों को। नाउ the topic for today's session will be graphical organization and graphical representation। Okay, so from now onwards, try to focus on the session and I will try to explain with the basics so that it will be easier for you to understand all the graphical representation and how we organize the data। ठीक है, that is very important। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता चल गया कि हमें हमारे पास डेटा है, उसको मेरे को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको क्लासिफाई करना है, then it will be very easy for us to calculate that data, or you can say to compute that data and how we come to the conclusion। ठीक है, तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें अच्छे से आ गया, देन अदर्स थिंग क्या है, उसमें तो सिर्फ हमें फॉर्मूला डालना है और हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यूज, एंड वी कम टू द कंक्लूजन कि हम ये मैंने एक मीनिंगफुल मैंने डिसीजन या कंक्लूजन मैंने इस डाटा से मैंने ऑब्जर्व किया है। सो टुडेज टॉपिक विल बी डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड graphical representation। So here first we will have the introduction, then we have classification and the tabulation of qualitative and quantitative data। तो qualitative और quantitative में अगर किसी को डाउट हो तो they can unmute yourself and you can ask, अगर किसी को नहीं पता है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन। टेबुलेशन मतलब क्या होता है, टेबुलेशन में बता दो, टेबुलेशन मतलब जो हम टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, अभी आगे आएंगे, जो टेबल्स बने होते हैं ना, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और उसमें अंदर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, इतने नंबर ऑफ पीपल्स, इतने नंबर ऑफ डिफरेंट स्कोर्स। जो हम टेबल बनाते हैं, टेबल का जो प्रोसेस होता है, हाउ वी फॉर्म दैट टेबल डिपेंड्स ऑन आवर डाटा कलेक्शन, सो दैट कम्स अंडर टेबुलेशन। ओके, then we have construction of frequency distribution, computation of ungrouped frequency distribution and computation of grouped frequency distribution। So we have two different terms over here, ungroup and then group। तो अनग्रुप और ग्रुप तो क्या है, सिंपल सा वर्ड है, आपको ही पता चल गया होगा। अनग्रुप मतलब जो ग्रुप में नहीं होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हमें डाटा दिया होगा कि 10 लोगों के इतने नंबर, इतने सब्जेक्ट्स में इतने इतने नंबर आए हैं। तो और ग्रुप में क्या होता है, हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। सपोज कि क्लास में
30 से लेके 50 तक का मैंने एक वो इंटरवल बना दिया, 30 to 50। इसमें सपोज 10 लोगों के 10 बच्चों के नंबर्स आए हैं 30 से 50 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो इसको हम बोल देंगे ग्रुप। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि उस ग्रुप में जितने लोग फॉल कर रहे हैं ना, उस ग्रुप के अंदर जितने लोग अगर उसके अंदर आ रहे हैं, उसको हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज कि मैं बोलूँ क्लास में 80 नंबर्स कितने बच्चों के आए हैं, सपोज 3 बच्चों के आए हैं, ठीक है, 80 नंबर अगर 3 बच्चों के आए हैं, तो 80 नंबर तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही है नंबर, मैंने अनग्रुप हो गया है, और इसमें 3 बच्चों के 80 नंबर 80 मार्क्स आए हैं मैथ में। तो 80 क्या हो जाएगा, अनग्रुप है, मैंने ग्रुप में तो नहीं किया है इसको। और ये 3 क्या हो जाएगा, मेरी फ्रीक्वेंसी, कि इस डाटा के अंदर, इस इंटरवल के अंदर, या फिर इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो जो हमारा आंसर देगा ना, यहाँ पे 3 बच्चों के आए हैं, तो 3 बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर इसी को मैं ग्रुप में कन्वर्ट करूं, तो सपोज कि 60 से लेके 80 मार्क्स तक मैंने एक टेबल बना दिया, एक इंटरवल बना दिया, और इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, इसमें सपोज 7 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 60 to 80 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो जाएगा हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी आ जाएगी, ग्रुप इंटरवल की आ जाएगी। 7 लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे, 60 से लेके 80 नंबर तक कितने बच्चे हैं, ये 7 बच्चे, तो ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप डेटा। एंड यहाँ पे जो 3 बच्चे हैं, ये क्या है, एक तो सिंपल, ये एक ही नंबर है, 80 नंबर है, यहाँ पे कोई ग्रुप तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डेटा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया। And then we have cumulative frequency distribution. This is again a type of frequency distribution, how we distribute the frequency on the basis of the group or ungroup, or you can say the basis of the nature of the data। ठीक है, हमारे पास कैसा डेटा है, कैसे हमने टेबल में उसको फॉर्म किया है, उसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो जो अलग अलग तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So we have several types of frequency distribution in this chapter. One by one we will go and we will try to understand the basic concepts. Then we have the next topic, we have percentile and the percentile ranks। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इन वर्ड से फैमिलियर होंगे ऑलरेडी। परसेंटाइल क्या होती है, परसेंटाइल रैंक क्या होती है, अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू give you the basic idea for percentile and percentile ranks. Then we have graphical representation। graphical representation में क्या हो गया कि सपोज मैंने 100 लोगों का डाटा बनाया, 100 लोगों से मैंने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की, उससे मैंने क्या किया, उससे मैंने फिर एक टेबल बनाया, ठीक है। फिर मैंने एक टेबल बना दिया, यहाँ पे सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद मैंने वैल्यूज के आधार पे, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यूज, मैंने क्या किया, एक कंप्यूटेशन किया, उनको कैलकुलेट किया, या मैं उनको कम, जब मैं बोलता हूँ कैलकुलेट करना, डाटा को कैलकुलेट करना, उसका मतलब ये होता है कि वहां पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि इस क्लास और इस क्लास के बीच में क्या कंपैरिजन है, इस क्लास और इस क्लास के क्या कंपैरिजन है, सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से स्टूडेंट के आए हैं, या सबसे कम नंबर कौन से ग्रुप में आए हैं, ठीक है। तो ये सब जब हम बोलते हैं कंपैरिजन करते हैं, वी से कंप्यूटेशन, ठीक है। तो कंप्यूटेशन मैंने कर लिया, आंसर में मैंने निकाल लिया, लेकिन अब इतने सारे डेटा को मैं आपको कैसे बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे। सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, अगर मैं वन बाय वन, अगर आपको मैं अपना जो कंक्लूजन है मैं उसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, पूरे डेटा को, चाहे वो 100 लोग हो, 500 हो, 1000 लोग हो, हम उसमें क्या करते हैं, उस पूरे डेटा को ग्राफ के थ्रू इजी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, तो मैं ग्राफ की हेल्प लेता हूँ। ग्राफ यहाँ पे क्यों बोला गया है, ग्राफ क्या है, कुछ हमारा जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं ना बचपन में, कि हाँ चलो इसकी ड्राइंग बना दी, उसकी ड्राइंग बना दी, तो ये भी स्टैटिस्टिकल में हम, ये ड्राइंग पोर्शन है स्टैटिस्टिकल। तो आप ये ऐसे समझ लो कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब उसको ड्राइंग के थ्रू या कोई भी क्राफ्ट के थ्रू मुझे कैसे समझाना है। तो जब स्टैटिस्टिकल में जब डायग्राम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल इज बेसिकली अ मैथमेटिकल टर्म, जहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ग्राफ होता है, जिसमें हमारे पास सेक्शंस होते हैं जो डिवाइडेड रहते हैं, कि 1 सेंटीमीटर का ये सेक्शन है, 1 सेंटीमीटर का ये सेक्शन है, और ऐसे ही हमारे पास पूरा ग्राफ होता है। इफ यू वांट आई कैन शो यू अ ग्राफ ऑनलाइन। ओ यार, ग्राफ पेपर दिखा देता हूँ कैसा होता है। ओके, सो दिस इज आवर ग्राफ, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे सेक्शंस बनाए हुए हैं,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, और यहाँ पे जो पूरा हमारे पास डेटा होता है, जैसे हमारे पास ये डेटा है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफिकल फॉर्म में। और जो जो हम डेटा हम यहाँ पे बनाते हैं उसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स में हम इसी टाइप की हम ड्राइंग्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगेन वी हैव bar graph, then we have histogram, then we have frequency polygon, then we have cumulative percentage frequency curve, or you can say ogive, and then we have circle graph, or you can say pie chart। ठीक है, तो पाई चार्ट अगर आपने देखा होगा, ऐसे करके एक सर्कल होता है, आपने देखा होगा ऐसे एक सर्कल होता है जिसमें कैसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कि इतने एरिया में लोग, ये 30% एरिया ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 70% एरिया के लोग ये चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने बहुत जगह देखे होंगे ये सब चीजें, वही हमें देखना है कि हम कैसे इन सब चीजों को बनाते हैं। ठीक है, so this is the basic idea behind this chapter, or you can say unit 2, the introduction for statistics. Then I will move to the details section now. So first of all, we have introduction. So introduction about data organization. तो इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं, तो इंट्रोडक्शन में द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। ये जो जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी होंगी वो सब वही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, इन एन एग्जिट पोल सर्वे अ न्यूज चैनल वांट्स टू असेस द पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ द वोटर्स, हाउ दे आर गोइंग टू वोट इन द अपकमिंग इलेक्शंस, एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ द करंट गवर्नमेंट टू कम बैक इन द पावर अगेन। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ना कि हाउ दे आर गोइंग टू वोट इन द अपकमिंग इलेक्शंस एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ द करंट गवर्नमेंट टू कम बैक इन द पावर अगेन, तो ये एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है जो पोल सर्वे होता है, एग्जिट पोल होते हैं। अगेन मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, ये जब हम न्यूज चैनल देखते हैं, कभी भी देखना, जब भी कोई इलेक्शंस होता है किसी भी स्टेट का, तो रिजल्ट से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या आता है कि एग्जिट पोल तैयार होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। अगेन जो हमारा वोटिंग का रिजल्ट आता है, जो एक्चुअल रिजल्ट आता है, ओरिजिनल रिजल्ट आता है, वो क्या आता है, पूरे पॉपुलेशन का आता है, राइट। लेकिन जो एग्जिट पोल होता है जो हम करते हैं, वो क्या होता है, वो एक सैंपल होता है। सपोज कि दिल्ली की में इलेक्शन हुआ है, दिल्ली की पॉपुलेशन है 1 करोड़, और एग्जिट पोल क्या करेगा, एग्जिट पोल क्या करते हैं, वो 1 करोड़ लोगों के घर में जाके थोड़ी ना पता करेंगे, वो क्या करेंगे, 1000 ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे। सपोज 10,000 लोगों से उन्होंने पूछताछ की, अलग अलग एरिया में जाके पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो ये सब करके वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, डाटा कलेक्ट इसीलिए करते हैं to came to know about how the people are going to vote in the upcoming election, कि जो लोग हैं वो कैसे अपनी वोट देना चाह रहे हैं। और यू कैन से व्हाट आर द चांसेस ऑफ द करंट गवर्नमेंट टू कम बैक इन द पावर अगेन, कि अभी जो करंट में जो गवर्नमेंट है उसके कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा से अपनी गवर्नमेंट जो क्या गवर्नमेंट को क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे उस स्टेट में। तो ये सब हमारे जो आंसर्स होते हैं, इसमें इन सब के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और सैंपल के थ्रू हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब हमारा इंट्रोडक्शन है। देन वी हैव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड देन क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, तो क्लासिफाई कैसे करना हो, टेबल, टेबुलेशन मतलब टेबल में कैसे उसको डेटा को फॉर्म करना है, टेबल में कैसे उस डेटा को डालना है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के मतलब मैंने डेटा तो ले लिया, सब लोगों के घर चला गया और मैंने सबका डेटा ले लिया, अब मेरा काम क्या है। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि मेरे पास डेटा आ गया, 100 लोगों के पास मैं गया और मैंने उनको उनसे अलग अलग डेटा ले लिया। कि सपोज मैं 100 लोगों के घर में गया, मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, 100 लोगों से पूछा मैंने, आपकी एज कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और आपका वेट कितना है, आपका आईज का कलर क्या है। सपोज इस तरह की मैंने एक रिसर्च किया। देन अब मैंने रिसर्च तो कर ली, मेरे पास 100 पेज हैं जिसके अंदर एक एक पर्सन की पूरी डिटेल्स हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, अब मेरा नेक्स्ट काम ये होगा कि मैं इसको आगे स्टडी कैसे करूंगा। अब स्टडी करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, क्लासिफाई करना पड़ेगा। अब मेरे 100 लोगों की अलग अलग लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, डाटा मेरे पास टेबल पे रखा हुआ, तो मैं कंक्लूजन कैसे बनाऊंगा, सबको कंपेयर कैसे करूंगा। सबको कंपेयर करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, एक कंक्लूजन पे आने के लिए, सबको कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा, मुझे डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और इसी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण हिंदी में। ओ माय गॉड, चलो याद आ गया मेरे को। क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में, कि जो सिमिलर चीजें होती हैं उनको एक साथ कर देते हैं, जो डिसिमिलर होती हैं जिनमें सिमिलैरिटीज नहीं होती उनको हम एक अलग कैटेगरी में हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो यही होता है क्लासिफिकेशन। टेबुलेशन में हम डाटा को कैसे टेबल के अंदर फॉर्म करेंगे। और अब नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इसको मैं बता देता हूँ। चलो एक काम करो, जिसको पता है तो वो मुझे बता सकता है। एनीवन जिसको पता हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, दे कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अप। लेट मी सी हाउ मेनी जो ऑफ यू। यस, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो मतलब उसमें ना एक गुण टाइप होता है, जैसे मेल और फीमेल जेंडर टाइप। और क्वांटिटेटिव होता है न्यूमेरिकल टाइप, जो एक कांस्टेंट नंबर होता है। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जैसा बताया भाई ने, वो वैसे ही है, सेम है। तो यहाँ पे आप देखो, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, दिस रिफर्स टू ए क्वालिटी। क्वांटिटेटिव मींस हाँ, क्वांटिटी। क्वालिटी। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी वर्ड से ही हमारा क्या बना है, ये वर्ड हमारा बना है क्वालिटेटिव, और क्वांटिटी से क्या बना है, क्वांटिटेटिव। सो इट्स क्वालिटी एंड इट्स क्वांटिटी। तो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी हमारे किसके बारे में बताती है, हमारी क्वालिटी के बारे में बताती है। अब क्वालिटी कभी भी नंबर्स में तो नहीं बता सकते ना हम। अगर कोई मैं बताऊं कि हिमांशु क्या है, अच्छा है या तो बुरा है। अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि 7 नंबर वाला अच्छा है, 10 नंबर अच्छा है, 20 नंबर अच्छा है, 50 नंबर अच्छा है। तो नहीं, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जहां पे भी हम क्वालिटीज की बात करेंगे, सपोज मैं इफ मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने रिसर्च किया है कि आई वाज रिसर्चिंग अबाउट द कलर्स ऑफ द आईज ऑफ द डिफरेंट पर्सन्स। तो आईज का कलर क्या, मैं नंबर्स में तो नहीं बोल सकता, मैं यही बोल सकते हैं तो ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ये सब ऐसे करके मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो क्वालिटी बेसिकली वो होता है जो हमारे क्वालिटी के बारे में बताते हैं। तो क्वालिटीज कभी भी नंबर्स में नहीं हो सकती, राइट। क्वालिटी नंबर्स में तो नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस अगर मैं उस क्वालिटी को एक नए स्केल में डिवाइड करके या रिफॉर्म करके उसको बता सकूं कि अगर इसकी आईज का कलर ब्राउन है तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, इसके 10 में से 7 नंबर होंगे। ठीक है, वो एक अलग चीज आ जाती है। लेकिन क्वालिटी हमेशा क्या होती है, न्यूमेरिक में नहीं होती है, नंबर्स में नहीं होती है। देन अगेन वी हैव क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ये होता है, नहीं क्वांटिटी बताता है कितना। क्वांटिटी का मतलब कितना, क्वालिटी मतलब कैसा, राइट। इसका अगर हिंदी मीनिंग बताऊं तो क्वालिटी मतलब कैसा, क्वांटिटी मतलब कितना। तो कैसे का आंसर कभी भी नंबर में नहीं होगा, और कितने का आंसर हमेशा नंबर में होगा, राइट। तो यही हमारे यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। देन थिंग ओवर हियर इज क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया, अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, क्वालिटेटिव डाटा आर द डेटा अबाउट कैटेगरियल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वालिटेटिव डाटा क्या करेगा, कैटेगरी बताएगा वेरिएबल की। सम एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा आर द स्मूथनेस ऑफ द योर स्किन। तो जैसे स्मूथनेस ऑफ योर स्किन, किसी की स्किन कितनी स्मूथ है, तो इसको मैं किसके अंदर डालूंगा, इसको मैं क्वालिटेटिव के अंदर डालूंगा, क्वांटिटेटिव के अंदर तो नहीं डाल सकता इस डेटा को। देन वी हैव द कलर ऑफ योर आईज। तो कलर ऑफ योर आईज को भी मैं किसमें डालूंगा, क्वालिटेटिव। क्यों, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी तो नहीं बता रहा। द नेक्स्ट, द टेक्सचर ऑफ योर हेयर, ये भी क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि हेयर का कलर कैसा है, राइट। कैसा आ गया ना इसमें। द सॉफ्टनेस ऑफ योर पाम, कि मेरा जो पाम है उसकी सॉफ्टनेस कितनी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएगा। देन वी हैव क्लासिफिकेशन। अब हमने क्या किया, इतना काम तो हमने कर लिया, जो मेरे पास डेटा था मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि ये तो क्वालिटी वाले हैं वेरिएबल और ये क्वांटिटेटिव वाले वेरिएबल है। देन द नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन, कि हमें अब बाकी सारे डेटा को हमें क्लासिफाई कैसे करना है। ओके, so here I will start. The data classification is a method of organizing data into groups for its most effective and efficient use. सिर्फ यही काम है इसका, ठीक है। तो जो डाटा क्लासिफिकेशन होता है वो क्या करता है, ये मेथड है। क्या मेथड है ये, कि हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने का इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करने का
किस लिए हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं डाटा को, ताकि मैं उसको अच्छे से यूज कर पाऊं, राइट, कि उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाऊं और अपने ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से कंप्यूट कर पाऊं, तभी तो मैं क्लासिफाई कर रहा हूं ना। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने 100 लोगों पे रिसर्च किया, उनका डाटा मैंने कलेक्ट किया और उनके 100 फॉर्म्स, अगर तुम मान लो कि 100 फॉर्म है, मैंने 100 फॉर्म अलग अलग लोगों को दिया, 100 लोगों को फॉर्म देने दिया, उन्होंने फिल करके मुझे दे दिया। अभी मेरे पास 100 फॉर्म पड़े हुए हैं मेरे टेबल पे, तो मैं उसको कैसे यूज करूं, कैसे उसके बारे में स्टडी करूं? सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लासिफाई दैट डाटा into a groups or into a category so that I can use them effectively and efficiently। ठीक है, ताकि मैं उसको क्या करूंगा, ग्रुप में डिवाइड करूंगा। कैसे ग्रुप में डिवाइड करूंगा, सपोज मेरे पास 100 पर्सन्स थे, उनकी एज में मैंने सपोज डिवाइड कर लिया कि मैंने ये देख लिया 18 से 20 वाले लोग कितने हैं। ओके, 18 से 20 वाले लोग मेरे पास 10 लोग हैं। ओके, तो 10 वाले इधर आ जाओ। अब मैंने देखा कि 20 से 25 वाले लोग हैं, मेरे पास 20 लोग हैं। ओके, 20 लोग इधर आ जाओ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा ना। अब कम से कम मुझे ये पता है कि 18 से 20 वाले लोग तो मेरे पास 10 हैं और 20 से 25 वाले लोग मेरे पास 20 हैं। तो मैंने क्या किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफाई किया तो क्या हो गया, ये मेरा डाटा क्या होगा, इफेक्टिव हो गया, एफिशिएंट हो गया। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ आगे। मैं आगे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ इनको। क्लासिफाई बेसिकली हम करते हैं कंपेयर करने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। ये उन्होंने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 1 से लेके 25 नंबर तक कितने लोग हैं, 20। इन्होंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ। बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained in English test, students can be grouped into the into those obtaining 76 to 100, those obtaining marks between। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन तैयार किया स्टूडेंट्स का इंग्लिश टेस्ट में, कि इंग्लिश टेस्ट में कितने किसके कितने नंबर आए हैं। तो इन्होंने देखा कि 76 से लेके 100 तक तो 28 बच्चे हैं। 51 से 75 के बीच में जिसके नंबर आए हैं वो 40 लोग हैं। 26 से 50 तक के जिसके नंबर आए हैं वो 12 लोग हैं, ठीक है। और 1 से 25 तक जिसके नंबर आए हैं वो 20 लोग हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मेरा जो डेटा था ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा डेटा था, जो रो डेटा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें मैंने क्लासिफाई नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लासिफाई कर दिया सबको, है ना। क्लासिफाई किया ना, कि 76 से लेके 100 तक के जितने बच्चे होंगे उनको मैंने एक कैटेगरी में रख लिया। यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी बना दी, 1 2 3 4। क्लासिफिकेशन मैंने 4 क्लासिफिकेशन कर दिए, ठीक है। कि 1 से 25 तक जितने बच्चे हैं वो, यहाँ पे 26 से 50 के बीच में 12, यहाँ से 51 से 75 के बीच में 40, देन 76 टू 100 वी हैव 28 पीपल्स, यू कैन से 28 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। मैंने इस स्टेप का यूज कर लिया। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। पहले रो डेटा था, उसके बाद मैंने क्लासिफाई करके मैं यहाँ तक पहुंच गया, कि मैंने, चलो यार मैं वैसे तो कैसे रीड करूंगा, एक एक बच्चे के तो नंबर क्या लिखूंगा, मैं काम करता हूँ यहाँ पे कैटेगरी बना देता हूँ कि 76 से लेके 100 तक के बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, 51 से 75 के बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, 26 से 50 के यहाँ पे, और 1 से 25 के बीच में यहाँ पे। तो इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, सो किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी हिमांशु। If anyone have any kind of doubt, they can unmute yourself and they can ask freely, don't worry। हो सकता है कि किसी को ना समझ में आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, कुछ बीच में कुछ भी अगर डाउट आ रहा हो तो अभी साथ के साथ ही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल रिपीट माई सेल्फ। देन ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफाई हमने कर दिया, कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया। देन वी हैव टेबुलेशन। टेबुलेशन में मतलब मैंने बताया था ना, टेबुलेशन मतलब कि हम टेबल को कैसे बनाते हैं। ये टेबल ही तो बना रखी है ना, ये तो हम बस ये देखना है कि हमने यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे टेबल कैसे बनाई गई है ये हम सीखेंगे इसके अंदर, टेबुलेशन के अंदर सीखेंगे। सो टेबुलेशन में हम क्या सीखेंगे, टेबुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ क्लासिफाइड डाटा इनटू अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो टेबुलेशन है ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इनटू टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में। बस यही टेबुलेशन होता है। तो टेबुलेशन में अब यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं। एनी टेबल विल हैव सम कीज कंपोनेंट दैट आर डिस्कस्ड एज फॉलोज, कि जो भी कोई टेबल होगा उसके अंदर क्या कुछ तो कंपोनेंट्स होंगे जो हमें वहां पे इंसर्ट करने पड़ेंगे। जैसे टेबल नंबर, जैसे मैंने ये टेबल बना दिया, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पे हो गया। आप कभी भी देखना टेबल जब भी स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर होता है ना, सीरियल नंबर। तो कभी भी हम टेबल बनाएंगे तो पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको नंबर्स दे देंगे। तो ये भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी टेबल फॉर्मुलेशन में। तो यहाँ पे टेबल्स नंबर ये वाला, और सॉरी टेबल नंबर 2.2 जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये तो सीरियल नंबर हो गया। टेबल नंबर में क्या होता है, उस टेबल का नंबर,
तो जैसे इतनी इस बुक में कभी भी देखना, कभी भी देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ ना टेबल नंबर 2.1, आगे होगा टेबल नंबर 2.2। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी होता है। ये जरूरी क्यों होता है, टेबल नंबर देना क्यों जरूरी होता है? सपोज मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं और मैंने तुम्हें बोला कि तुम जब रिवाइज करोगे तो एक टेबल दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, पूरी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जो बता रहा है परसेंटेज, बता रहा है मेल्स की और फीमेल्स की, बता रहा है परसेंटेज, बता रहा है इंग्लिश टेस्ट में कितनी कितनी आई है। तो तुम इसके बेसिस पे सिर्फ अगर मैं इतना तुम्हें बताऊं कि एक टेबल है तुम्हारी बुक में जो परसेंटेज बता रहा है मेल और फीमेल की, और जाके ढूंढो, तो तुम क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, सब जगह ढूंढोगे, एक एक पेज पलट पलट के ढूंढोगे ये कहाँ है कहाँ है कहाँ है। लेकिन अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूं कि यू हैव टू चेक विद टेबल नंबर 2.2, अगर मैं तुमको बोल दिया टेबल नंबर 2.2 को देखना, तो तुम्हें क्या है, बहुत इजी हो जाएगा ना कि चैप्टर नंबर 2 का सेकंड जो टेबल होगा वो उसी को तुमको चेक करना है। तो टेबल नंबर इसलिए बहुत जरूरी होता है मेंशन करना, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए उस टेबल को फाइंड आउट करने में। देन वी हैव टाइटल ऑफ द टेबल। अब टेबल, हम कोई भी टेबल बना रहे हैं तो इसका क्या टाइटल भी तो देना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे टेबल नंबर 2.1 है, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। अब मेरे को कुछ तो टाइटल देना पड़ेगा ना, ताकि मुझे पता चले कि इस टेबल के अंदर ये डेटा है। तो ये हो जाएगा हमारा, तुम कह सकते हो इसको टाइटल ऑफ द टेबल या फिर नेम ऑफ दैट टेबल। थर्ड वी हैव कैप्शन एंड स्टब्स। तो कैप्शन एंड स्टब्स क्या होता है, एनी टेबल विल देन हैव rows and columns based on its contents. The heading given for columns are terms and caption. ठीक है, तो जो यहाँ पे ये क्या है, रो है ना, यहाँ पे देखो एक कॉलम, ये दूसरी कॉलम, दो ही कॉलम है ना, एक यहाँ पे मार्क ऑब्टेन्ड वाली कॉलम है, एक स्टूडेंट वाली कॉलम है, और रो कितने हैं, ये एक दो तीन चार, चार हमारे पास रो है, एक दो तीन चार हमारे पास रो है, और दो हमारे पास कॉलम है। तो जो कॉलम का जो नाम होगा, ठीक है, ये मार्क ऑब्टेन्ड क्या है, इस कॉलम का नाम है, और स्टूडेंट्स क्या है, इस कॉलम का नाम है। इससे हमें पता चल रहा है ना कि जो 28 यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस कॉलम का नाम क्या है, स्टूडेंट है। इसका मतलब जो 28 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये 28 स्टूडेंट्स है। यहाँ पे जो 40 लिखा हुआ है इसका मतलब 40 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है इसका मतलब 12 स्टूडेंट्स हैं। तो किसी भी कॉलम का जब मैं नाम देता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कैप्शन। जब मैं किसी कॉलम का नाम दूंगा तो वो कैप्शन हो जाएगा, जब मैं किसी भी रो का नाम दूंगा तो स्टब हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शायद जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ रोज और कॉलम के बारे में। MS एक्सेल खोल के उसमें शो कर दो। ये तो वैसे हिमांशु बेसिक है, क्लियर ही होगा सबको। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी कहीं ऐसा कोई हो ना जिसको यही ना पता हो कि रो और कॉलम क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। रो कॉलम तो क्लियर सबको पता ही होगा। क्लियर होगा। चलो ठीक है, मैं इसमें एक बार फिर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो ए बी सी डी ई एफ जी, जो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में होते हैं, ऊपर से नीचे वाले डायरेक्शन में होते हैं, हम बोल सकते हैं, हम मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं वर्टिकल। जो वर्टिकली हमें दिखेगा वो होता है हमारा कॉलम, और जो हॉरिजेंटली होगा वो होगा हमारा रो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो ये क्या हो जाएंगे, हॉरिजेंटल जो होते हैं, जो लेटे हुए होते हैं ना, जो लेटी हुई जो डायरेक्शन में होंगे उसको हम बोल देते हैं कॉलम, और जो खड़े होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी है जिसको हम बोलते हैं कॉलम। तो जब भी मैं कॉलम का कोई नाम दूंगा, सपोज मैं यहाँ पे टेबल ही बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसका टेबल का यहाँ पे दे दिया सीरियल नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्शन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या हो गया, सीरियल नंबर, नेम, स्कोर्स एंड परसेंटेज, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा कैप्शन, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉलम को मैंने नाम दे दिया। और जब मैं रो को नाम दूंगा, किसी भी रो को नाम दूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे रो को नाम दिया कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरी रो का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, और इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टब। So I would like to repeat myself. Let's move to the main content. ओके, सो कैप्शन क्या हो जाएगा, कैप्शन हम उसे बोलेंगे जो कॉलम का नाम होगा, और जो रो का नाम होगा उसे हम बोल देंगे स्टब्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। देन वी हैव द बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ टेबल क्या हो जाएगी, जो टेबल की पूरी बॉडी होती है, ये जो पूरा एरिया हो जाएगा इसको बोल देंगे टेबल की बॉडी बोल देंगे। बॉडी ऑफ टेबल इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट रिफ्लेक्ट्स द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो ये पूरी टेबल की बॉडी मतलब समझिए, टेबल का जो पूरा पार्ट होगा उसको हम बोल देंगे बॉडी ऑफ द टेबल। एंड द नेक्स्ट वी हैव हेड नोट। तो हेड नोट क्या होता है, टेबल हैव also have head notes which could be written in the extreme right below
द टाइटल दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख नहीं पाए, इतना हमें देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन किसी ने अगर पता नहीं भाई, इंजीनियरिंग में हम करते थे, जैसे अगर मुझे सपोज बिल्डिंग बनानी है और एक पेज पे बिल्डिंग बनानी है, तो एक पेज पे बिल्डिंग तो हम नहीं असली में तो नहीं बना सकता ना, मैं क्या करूंगा उस बड़ी बिल्डिंग को छोटी बिल्डिंग के रूप में उसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो हम क्या करते थे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब है 1 मीटर, हम ऐसे लिख देते थे। बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर, ऐसे हम जब रिप्रेजेंट कर देते हैं ना कि यहाँ पे जो ईडी मैं में डायग्राम, बनाते थे। हाँ, जहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, छोटे पेज पे जो डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, इसको 1 मीटर मानना। ठीक है, तो इस चीज की इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हेड नोट, जो हमें बताता है क्या होता है, यूनिट के मेजरमेंट बताता है। देन वी हैव फुट नोट। फुट नोट अगेन क्या बताता है, टेबल की इंफॉर्मेशन देता है। दिस आर रिटन बिलो द टेबल एंड मे डिस्प्ले क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कैप्शन एंड स्टब्स। तो ये फुट नोट क्या करता है, जो कैप्शन और स्टब्स में, जो यहाँ पे कैप्शन क्या है, मार्क ऑब्टेन्ड स्टूडेंट्स, इनकी क्या है, इनको डिटेल में थोड़ा नीचे में लिख देते हैं हम, उसको बोलते हैं फुट नोट। देन वी हैव सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा मतलब तुमने देखा होगा ना कि बहुत सारी चीजों में सोर्स ऑफ डेटा, कि मैंने डेटा को कहाँ से कलेक्ट किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय, और कैप्शन बाय या सोर्स बाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे से, तो उसको हम बोल देंगे ये सोर्स ऑफ द डेटा, कि हमने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, राइट। तो ये चीजें हो जाएंगे हमारे इसके अंदर आ गई। देन वी हैव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। So as discussed above, classification and tabulation are the significant in organizing the data. Some of the merits of classification and tabulation are as follows. Merits बता रहा है क्या क्या हमें फायदे होंगे क्या करने में, क्लासिफाई करने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में। तो ये सब मैं वैसे ही वर्बली आपको बता चुका हूँ, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। क्लैरिफाई द डाटा, डाटा को क्लैरिफाई कर देता है। देन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई कर देता है डाटा को। देन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन को हम कंपेयर कर सकते हैं, राइट, ठीक है ना। अगर जब क्लासिफाई कर देंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे दोनों को। देन वी हैव इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली रेफर्ड, इंफॉर्मेशन को भी क्या हम इजीली रेफर कर सकते हैं। Then the next topic we have is construction of frequency distribution. Frequency distribution को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, frequency distribution मैंने बताई ना, जैसे यहाँ पे इस टेबल में 76 से 100 के बीच में कितने लोग हैं, 28। तो 28 क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये याद रखना, जो हमें जिस जैसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे। 51 से 75 कितने हैं, 40 हैं, तो 40 क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। 26 से 50 के बीच में कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, तो ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी को कैसे हम फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। ठीक है, तो पहली फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, so relative frequency distribution में क्या होता है, it is a distribution which denotes that the score that is allotted for each class interval is the proportion of the total number of the cases in the distribution. For example से आपको पता चलेगा, in a frequency distribution of 100 employees, ठीक है, ये कह रहा है कि frequency distribution of 100 employee, total 100 employee हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब मेरे पास 100 एम्प्लॉयज है, सपोज एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं, अब 100 एम्प्लॉयज हैं, उनका मेरे पास डाटा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई करने के लिए मुझे कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अब कैटेगरी मैंने बना दी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो कि कितने लोगों के पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर मैं ये कैटेगरी बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अभी तो मुझे ये पता है कि कंपनी में टोटल 100 एम्प्लॉयज हैं, लेकिन अब मुझे क्या किया, मैंने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से कैटेगरी बना दी, तो मेरे पास अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी ना। सपोज कि 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितने लोगों के पास है, 20 लोगों के पास है। 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितने लोगों के पास है, 30 लोगों के पास है। तो यहाँ पे जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, कैटेगरी। और जब मैं बता रहा हूँ कि 10 साल का एक्सपीरियंस अगर 20 लोगों के पास है, तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन अब ये कह रहा है कि 35 employees fall in the range class interval of 10 to 14 a year of experience। अब ये कह रहा है 10 से 14 साल का एक्सपीरियंस कितने लोगों के पास है, 35 लोगों के पास है। कितने लोगों में से, 100 लोगों में से। ठीक है, तो 35 क्या हो जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, और 10 to 14 ईयर्स मेरी क्या हो जाएगी, कैटेगरी हो जाएगी। अब ये कह रहा है, अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी 35, कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, 10 से 15 साल का,
35 लोगों का एक्सपीरियंस है 10 से 14 साल का, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि 35 लोगों का एक्सपीरियंस है कितना, तो 10 से 14 साल का, और टोटल कितने हैं 100। तो जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा 0.35, ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको वर्ड के हिसाब से समझाऊं, रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेट करना, है ना, हम रिलेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में बता रहे हैं, उसको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहे। रिलेटिव मतलब रिलेट करने वाली फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये पता चल गया कि 35 एम्प्लॉयज की जो एक्सपीरियंस है, 10 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, कितने में से, 100 में से। ठीक है, तो ये हो गया 0.35। तो ये क्या हो जाती है 0.35 हमारा नंबर जो आएगा, इसको हम बोल देंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। या फिर इसको अगर मैं परसेंटेज निकालनी आती है सबको, 35/100 ये हमारा नंबर है, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। तो 35% जो मेरे एम्प्लॉयज होंगे, 100 में से 35 लोगों का एक्सपीरियंस है 10 से 14 साल का, तो ये कितने हो गए, 35% ऑफ एम्प्लॉयज हो गए जिनका एक्सपीरियंस कितना है, 10 to 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो इस तरह की कैलकुलेशन होगी, जब हम रिलेट कर देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, तो उसको हम बोल देंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है, सपोज कि मेरे क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क है, सब हाईएस्ट नहीं, मैं अगर क्लास में मेरी 3rd पोजीशन है सपोज, ठीक है, और मेरी 3rd पोजीशन है, मेरे मैथ में मार्क्स आए हैं 90 मार्क्स आए हैं, जो 2nd पोजीशन वाले के 95 आए हैं, और 1st पोजीशन वाले के आए हैं 98 मार्क्स आए हैं, लेकिन मेरे 90 मार्क्स है, मेरी 3rd पोजीशन है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम ये बताते हैं कि हिमांशु, इसकी रैंक 3rd आई है, तो मैं कितने लोग मेरे से नीचे हैं। ठीक है, जो डेटा हमेशा ये इंफॉर्मेशन देगा ना कि इस नंबर से नीचे कितने लोग हैं, कि इस हिमांशु 3rd पोजीशन पे आया है, तो इससे नीचे कितने लोग हैं, कितने लोगों से ये ऊपर है, उस टाइप के डेटा को हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया। रिलेटिव में तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि इतने परसेंट जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस है 10 से 14 साल। हमें ये नहीं पता कि कितने लोगों का 10 से 14 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, कितने लोगों का 10 से 14 साल से कम एक्सपीरियंस है, ये हमें नहीं पता चला ना। हमें सिर्फ ये पता चला कि जो 10 से 14 साल वाले जो लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है वो 35 लोग हैं, और 35 लोग 35% है, कि 100 में से 35% लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस 10 से 14 साल है। लेकिन मेरे को ये पूछना है तुमसे कि भाई ठीक है, अब तुम ये बताओ कि कितने लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस 14 साल से ज्यादा है, या ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से कम है। तो ये तो हमें यहाँ से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं पता चला। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो 35 लोग हैं इनसे नीचे कितने लोग होंगे, और 35 लोग हैं इनसे ऊपर कितने लोग होंगे। ये जब जहां पे इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी उसको हम बोल देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कम्युलेटिव रिलेटिव, यहाँ पे क्या दोनों वर्ड आ गए, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि कम्युलेटिव प्लस में रिलेटिव, यहाँ पे दोनों वर्ड आ गए। ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है, देखो यहाँ पे मैं इस एग्जांपल इससे बताता हूँ आपको। एग्जांपल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये बता रहा है कि स्कोर, क्या एग्जांपल लिया है इन्होंने, ओके। तो सपोज करो कि ये 34 कोई क्लास के स्कोर्स हैं, 23, 22, 21 और 19, ये स्कोर है, डिफरेंट स्कोर है। फ्रीक्वेंसी मतलब 3 स्टूडेंट हैं जिनके 34 मार्क्स आए हैं, ठीक है। 4 स्टूडेंट है जिनके नंबर आए हैं 23, 10 स्टूडेंट है जिनके नंबर आए 22, 6 स्टूडेंट है जिनके नंबर आए 21, 7 स्टूडेंट है जिनके नंबर आए हैं 19। और अब इनको मैं टोटल करूंगा तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30। इन सबको ऐड करेंगे तो 30 आ जाएंगे। अब बात आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यही बताता है ना कि टोटल नंबर ऑफ कितने परसेंट लोग आते हैं इस कैटेगरी में, यही बताता है। इसको सिंपल लेमन लैंग्वेज में ये याद रखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको ये जवाब देगा कि इस कैटेगरी में कितने परसेंट लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब टोटल हमारे पास 30 हैं, और 3 लोग तो आ रहे हैं हमारे इस कैटेगरी में, 30 में से 3 लोग हमारे 34 मार्क्स लेके आए हुए हैं, तो ये कितना परसेंटेज हो गया, 10% हो गया ना। समझ में आया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कितने लोग हैं 3, कितने में से 30 में से, 3/30 into 100 हो जाएगा। ठीक है, यस। और परसेंटेज निकालना तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना। कितने लोग हैं 3, कितने में से 30 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 10% हो गया। ठीक है, कि इस कैटेगरी में हमारे पास कितने लोग हैं 10% लोग हैं। तो ये आंसर किसने दिया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा।
ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यही बताता है कि उस कैटेगरी के अंदर कितने परसेंट लोग हैं। अब नेक्स्ट आ गया 4, ठीक है, अब 4 लोग आ गया तो 4 को मैं क्या करूंगा, 30 से डिवाइड करूंगा और इंटू में कर दूंगा 100, ठीक है। तो जब मैं ये काम करूंगा ना तो इसका आंसर मेरा आएगा 13.33, ठीक है। ऐसे 10/30 इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगी ना, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 33.33। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें उस कैटेगरी का, उस रो का हमें परसेंटेज बताती है कि कितने लोग इसके अंदर फॉल करते हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, मैंने बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती है कि यहां से नीचे कितने लोग हैं, यहां से ऊपर कितने लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 30, 27, 23, 13, 7, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 30 लोग हैं ना हमारे पास, 3 इस कैटेगरी में आ गए, तो हमारे पास कितने बच गए, 27, ठीक है। कि जो ये 3 लोग हैं ना, यहाँ पे जो 3 लोग हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड, यस। तो यहाँ पे जो 3 लोग हैं इनके मार्क्स है 34, तो इनसे नीचे कितने लोग आ जाएंगे, 27। समझ में आया, पता चली बात ये कि टॉप जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर आए 34, ठीक है। तो लेकिन इनसे कम ये कितने लोगों से ऊपर है, 27 लोगों से ऊपर है, ठीक है। इनके नीचे कितने लोग हैं, 27 लोग इनके नीचे, क्योंकि टोटल तो 30 है ना हमारे पास, टोटल 30 लोग हैं, तो इनके नीचे कितने आ जाएंगे, 27 लोग आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 4 हैं, 27 में से 4 लोग यहाँ पे हैं, तो इसके इनसे कम नंबर वाले कितने हो जाएंगे, 23, क्योंकि 27 में से 4 मैंने माइनस कर दिए, 4 तो इस कैटेगरी में आ गए, तो बच कितने गए, 23 बच गए। और यहाँ पे कितने, 10 लोग हैं, तो 10 लोग 23 में से 10 लोग तो इस कैटेगरी में, तो बच कितने गए, 13 लोग। मतलब यहाँ पे 10 लोगों से नीचे कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 13 लोग हैं, 13 में से 6 लोग तो 21 नंबर वाले हो गए, तो यहाँ पे 6 लोगों से नीचे कितने लोग आ जाएंगे, 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया ये चीज, किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है ना, नहीं हिमांशु, क्लियर है। गुड। तो यहाँ पे कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, ये परसेंटेज में कैलकुलेट कर देती है कि यहाँ पे 100%, इनका परसेंटेज निकाल दिया हमने बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। कि इस कैटेगरी में 100%, 100% लोग, 100% मतलब सबसे ऊपर यही है, इसके बाद नीचे 27 लोग हैं, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 89.99, 23 का 76, फिर 43, फिर 23, बस यही है। कि यहाँ पे इससे नीचे कितने लोग हैं, 89%, ये सारे के मिला दूंगा ना तो कितने लोग हो जाएंगे, 89% हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूंगा तो ये सब मिला दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 76% हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों को मिला दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 43% हो जाएंगे। और ये 7 कितना है, 23% है। ये है बस। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट? नहीं। नो। गुड। ओके, सो समवन सेड कि एक बार कम्युलेटिव दोबारा बताना। ओके देन, कम्युलेटिव में क्या होता है, कम्युलेटिव में हम बस ये बताते, ये याद रखना कि कम्युलेटिव में बस हम ये बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखो, ये चीज देखो, यहाँ पे क्या है, 19 नंबर, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 34। एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि नंबर क्या है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि 19, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 34। कम्युलेटिव का बता रहा हूँ, सुन लेना एक बार दोबारा ध्यान से। तो जो 3 लोग हैं उनके आए 34 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, टॉपर हो जाएंगे ना, 3 लोग तो टॉपर हो गए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं 3, अब इसको यार यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखेंगे 30, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 30 शुरू में हम 30 लिखेंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 है। तो इसके नीचे नंबर जो आएगा वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, 30 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 27 यहाँ पे आ जाएगा। कि यहाँ पे नीचे कितने लोग हैं जो इनसे कम नंबर लिए हैं, तो कितने, 27 हो गए ना, इन सबको ऐड कर देंगे। या फिर मैं एक तरीका बताता हूँ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो हम बात करें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, देन पहली कैटेगरी में हमारे पास 3 लोग हैं जिनके 34 मार्क्स आए हैं, तो इनसे कम, कितने लोग हैं जिनके 34 से कम मार्क्स आए हैं, तो 27। ये यहाँ पे देखो, दोबारा से देख लेना,
यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर आएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, लेकिन इससे नीचे कितने आएंगे, इससे नीचे वही आएंगे ना, बस माइनस करते हुए जाना, माइनस करते हुए जाना। अगर वैसे अगर मैं मीनिंग बताऊं तो यहाँ पे वो होगा जो इस कैटेगरी के नीचे जो बच गए, कितने लोग बच गए, 30 में से 3 लोग तो यहाँ पे आ गए, तो कितने बच गए, 27 बच गए। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी 3 तो ऊपर चले गए, इससे ऊपर चले गए। 23 वाली कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो 4 लोग हैं जिनके 23 मार्क्स आए हैं, ठीक है, और ये 13% है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, क्योंकि 3 तो पहले ही चले गए, 34 वाली कैटेगरी में चले गए। अब यहाँ पे हमारे पास बच गए 27 स्टूडेंट बच गए ना, 3 तो चले गए ऑलरेडी ऊपर वाली कैटेगरी, यहाँ पे बस टोटल स्टूडेंट 27। अब इन 4 इसमें आ गए, इस कैटेगरी में आ गए, तो नीचे कितने लोग आएंगे, 4 तो इसमें आ गए, तो नीचे बच गए 23। 27 में से 4 माइनस कर दूंगा, या फिर मैं दूसरे वर्ड में अगर मैं कहूँ तो 20, इन ये 4 लोग हैं, ये क्लास में कितने लोग इनसे नीचे हैं, इनसे है 23 लोग इनसे नीचे हैं, क्योंकि 3 तो ऊपर चले गए और 4 इस कैटेगरी में आ गए, कितने हो गए 7। 7 30 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 23। तो हम बस इसमें रिलेट कर रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे नीचे कितने लोग आएंगे और इससे ऊपर कितने लोग हैं, बस हम ये इसके बारे में बता रहे हैं और कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन आगे हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ओके गाइस, आई होप कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया होगा। इसमें हम बस हमें यही बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग इनसे नीचे होंगे या कितने लोग यहाँ पे हमारे पास बच गए हैं इस कैटेगरी के अलावा। तो ये हमारे यहाँ पे रिजल्ट है। एनीवन एल्स, किसी को कोई डाउट है कम्युलेटिव में? जब आगे हम इसका वो करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे इसका यूज होता है। और ये सिर्फ यहाँ पे इस कैटेगरी में कितने लोग हैं 100%, कितने बच गए नीचे 89%। 3 अगर यहाँ पे आ गए तो 3 में से कितने बच गए 89% यहाँ पे नीचे बच गए लोग, ठीक है। इस कैटेगरी में 4 आ गए तो 89.99% में से 4 लोग और इस कैटेगरी में आ गए, तो कितने बच जाएंगे 76.66% लोग बच जाएंगे। इस कैटेगरी में कितने आ गए 10 लोग आ गए, तो इससे नीचे कितने लोग बच जाएंगे 43.33% इससे नीचे वाले कैटेगरी में रह जाएंगे। देन इस कैटेगरी में 6 लोग आ गए, तो इससे नीचे वाले कैटेगरी में कितने लोग बच जाएंगे 23.33% लोग बच जाएंगे। यही इसका बेसिक आइडिया है। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर हो गया यस चलो। हिमांशु। Good. So the next one we have is the methods for frequency distribution. There are two main methods to describe the class interval. तो किसी ने अगर statistical methods का assignment बनाया होगा तो activity number 1 में पूछा गया था what is the method of the class interval, कि वहां पे जो क्लास इंटरवल का क्या मेथड है। तो उसका आंसर या तो इंक्लूसिव होना था या फिर एक्सक्लूसिव होना था। मैं इसको एक तरीके से बताता हूँ। सपोज क्लास इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल पता चल गया ना, जो यहाँ पे ये क्या है, ये क्लास इंटरवल नहीं है। यहाँ पे क्या हमने डायरेक्ट अनग्रुप डेटा है, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर मैं इसी को मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कि 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, ठीक है, 20 से 30 के बीच में कितने मार्क्स आए हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोलेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास का मैंने इंटरवल बना दिए, इंटरवल बना दिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, अब यहाँ पे मैं अनग्रुप की बात कर रहा था, यहाँ पे मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास इंटरवल बना दूंगा तो ग्रुप आ जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि 10 से 20 या फिर 20 से 30, 20 से लेके 30 तक, तो 20 से लेके 30 तक तो ये तीनों कैटेगरी आ गई उसके अंदर, 21 वाले भी, 22 वाले भी, 23 वाले भी। तो ये कितने हो जाएंगे 10 प्लस 6 प्लस 4, 20 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो 20 से 30 में अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे 20 लोग हो जाएंगे, पता चल गया। तो ये इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, और ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, ग्रुप डेटा में। तो ये जो क्लास इंटरवल जो हम क्लास बनाते हैं ना, जो इंटरवल बनाते हैं, दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड, एक होता है इंक्लूसिव मेथड। तो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या डिफरेंस होता है, मैंने सपोज ले लिया 1 to 10, फिर नेक्स्ट इंटरवल मैंने ले लिया 10 to 20, फिर नेक्स्ट इंटरवल मैंने ले लिया 20 to 30, इसको मैं बोलूंगा एक्सक्लूसिव मेथड।
क्यों बोलूंगा एक्सक्लूसिव मेथड? अब तुम ये बताओ कि यहाँ पे 1 से लेके 10 तक मैंने इस कैटेगरी में ले लिया, जिस बच्चे के 10 नंबर आए हैं सपोज, वो इस कैटेगरी में आएगा, और इस कैटेगरी में भी तो आ रहा है, यहाँ पे भी 10 से 20 ले रखा है ना मैंने, कि जिसके 10 मार्क्स आएंगे वो, और जिसके 20 मार्क आएंगे, 10 से लेके 20 तक के जितने बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे भी मैंने ये ले लिया, 1 से 10 तक के बच्चे जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो जिस बच्चे के 10 नंबर है, क्या वो इस कैटेगरी में भी आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, दोनों में आएगा? दोनों में आएगा तो हमारा तो गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, मैंने दोनों कैटेगरी में ले लिया। तो एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है? एक्सक्लूसिव मेथड में हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो 10 मार्क्स वाला है ना, वो इस कैटेगरी में आएगा, सेकंड वाली कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। ये रूल होता है, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे एक्सक्लूसिव मेथड में अगर मैं क्लास इंटरवल्स को डिवाइड करूंगा, तो क्या करेगा, वो इस कैटेगरी में आएगा, ना कि इस कैटेगरी में। ठीक है? तो जिसके 10 नंबर होंगे वो इसमें नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 1 से 9 तक के आएंगे, और यहाँ पे 10 से लेके 19 तक के आएंगे, और यहाँ पे 20 से लेके 29 तक के आएंगे। ठीक है? लिखा तो मैंने ऐसा हुआ 1 से 10 तक, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये, जब भी तुम्हें ये दिखे ना कि यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू और यहाँ पे पहली वाली वैल्यू सेम है, दोनों सेम है, तो ये कौन सा मेथड आएगा? एक्सक्लूसिव मेथड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक जगह उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लूसिव मेथड। तो इसके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, जैसे मैं 1 से 10 लिख दूं, और 11 से 20, 21 से 30, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव। यहाँ पे क्या मैं इंक्लूड करूंगा, 10 वाला इसी कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे 11 से शुरू हो रहा है 20 तक, यहाँ पे 21 से शुरू हो रहा है 30 तक। यहाँ पे देख रहे हो कोई भी रिपीट हो रही है कैटेगरी, कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। यहाँ से 1 से 10 तक, फिर 11 से 20 तक, 21 से 30 तक, यहाँ पे कोई भी नहीं हो रही है। तो इसको हम बोल देंगे इंक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर रहे थे। सेकंड कैटेगरी में 10 वाले नंबर, फर्स्ट वाली कैटेगरी में 10 वाले नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया था, और किस में डाल दिया था, दूसरी वाली में डाल दिया था। ठीक है? तो यही हमारा बेसिक डिफरेंस होता है किसका, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड में। Then we have ungrouped frequency distribution. Ungrouped frequency distribution मैंने बताया, यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल आपको नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि यहाँ पे हम अनग्रुप की बात कर रहे हैं। अनग्रुप की बात करें तो यहाँ पे इंटरवल आपको नहीं मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टैलीज को आप ध्यान मत देना, टैलीज बस कंफ्यूजिंग है। बस ये नंबर ही है कि सपोज मैं कोई डाटा रीड कर रहा हूँ कि 6 वाली वैल्यूज में कितने लोग आते हैं, पहले 1 2 3, तो जो टैली जितने भी डंडे यहाँ पे जो तुम्हें ये वर्टिकल लाइंस जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रही है, ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रही है। यहाँ पे 1 2 3, तो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, कितने लोग हैं, 4। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हैं, 5। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना है। बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी बता रही है टैलीज। ठीक है? तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसका यहाँ पे यूज भी नहीं होने वाला है। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये बहुत पुराने तरीके हैं जो पहले यूज किए जाते थे, अभी ऐसा यूज हम बहुत सारी जगह नहीं करते हैं, इसका टैलीज का यूज नहीं होता। कभी अगर तुमने देखा होगा तो, अगर पुरानी मूवीज में या फिर कुछ मूवीज आती हैं जिसमें ऐसे टैलीज का यूज करते हैं डेटा को क्लासिफाई करने के लिए, तो टैलीज का मतलब क्या है, टैलीज का मतलब यही है कि कितने लोग हैं इसके अंदर। ठीक है? तो ये अनग्रुप हो गया, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिया। देन वी हैव ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप में देखो यहाँ पे आ गई ना कैटेगरी, यहाँ पे आ गई ना, तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई, तो देखो यहाँ से 1 से 5 में कितने लोग आ जाएंगे, 1 2 3। अगर 3 लोग हैं तो यहाँ पे 3। 6 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5। 10 से 15 में कितने हैं, 2 लोग हैं, तो यहाँ पे आ गया 2। 16 से 20 में कितने लोग हैं, 1, तो यहाँ पे आ गया 1। 21 से 25 में 1 1। ठीक है? ये आ गया। कोई डाउट किसी को? नहीं नो नहीं हिमांशु। गुड। तो ये एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि एक रो डाटा है, इसको हम बोलते हैं रो डाटा। क्यों बोलते हैं रो डाटा? क्योंकि अभी तक हमने ना तो इसको क्लासिफाई किया है, ना हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ना हमने टेबल को फॉर्मुलेट किया है, तो इसको हम बोल देंगे रो डाटा। तो यहाँ पे एक रो डाटा है जो बोल रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स आर गिवन फॉलोज। तो 40 लोगों के जो नंबर आए हैं वो इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है? तो इन्होंने बाद में क्या किया है, एक सेकेंड, हाँ 10 10 10 10, ठीक है, तो इन्होंने ये सही टेम बनाया। तो कंप्यूटेशन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बोल रहा है कि अनग्रुप, ये हमारे अनग्रुप ही है ना, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ। बना भी सकते हैं हम, चाहे तो हम बना भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बस क्या किया है, हाँ, तो टैली से क्या किया, सपोज अगर आपको, अगर मैं ऐसे डेटा दे दूं, ठीक है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना। सपोज 3 एक बार आया, फिर 3 2 बार आया, फिर 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मैंने क्या टैली में यहाँ पे लिख दिया 3 1 2 3 4। मैंने 3 देखा, एक बार आया,
फिर मैंने दूसरी बार देखा, फिर मैंने तीसरी बार देखा, फिर मैंने चौथी बार देखा, फिर लास्ट में मुझे क्या इजी हो जाएगा ना कि हाँ 4 बार आया था, तो लास्ट में मैंने लिख दिया हाँ यार ये मेरे पास ये 4 है। फिर 4 वाले मैंने काउंट करे, ये क्या है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, फिर 5 बार आया, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से देखने में मुश्किल हो रहा है ना मेरे को, तो मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगा, ऐसे बनाऊंगा। चलो 0 मार्क्स वाले देखता हूँ, 0 मार्क्स वाले कितने हैं, 0 मार्क्स वाले 0 1 हो गया। फिर कितना है यहाँ पे, और कोई नहीं है, एक ही है, चलो ठीक है। अब 0 मार्क्स वाला 1 है। अब मैं देखूंगा 1 मार्क वाला, 1 मार्क वाला कितना है, 1, ये हो गया 1। चलो और कोई है, और कोई, यस एक और है, दूसरा। फिर और कोई है, और कोई नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही है। अब मैं 2 मार्क्स वाले देखूंगा, 2 मार्क्स वाले कितने हैं, एक भी नहीं है 2 मार्क्स वाला, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई टैली नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ। देखो 0 में 1, फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो जाएगी 1, इसमें 1 कितने हैं, 2 लोगों के पास है तो 2। तो ये हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टैली मेथड को यूज करके, किसका, अनग्रुप डेटा का। समझ में आया? ये सिर्फ हम यहाँ पे बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इसका कहीं यूज होने वाला नहीं है आगे, क्योंकि आगे हमें जो यूज करना है वो मीड, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत सारे तरह के डेविएशन आएंगे। तो ये सब हमारा बेसिक है कि हम डेटा को क्लासिफाई कैसे करते हैं टेबल्स में। ये हमारे पास ऐसा डेटा अगर आता है तो वहां से लेके हम वहां से हम यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं हम यही सीख रहे हैं, अभी तक बेसिक सीख रहे हैं। देन वी हैव, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, अरेंज योर रो डाटा इन array ascending or descending order. Then step 2, make a table with 3 columns, name them as a variable, marks in the case present, tallies frequency। तो ये मैंने टेबल बना दिया, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही थी, तो एक मार्क्स का बना दिया, एक फ्रीक्वेंसी का, कि उस कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं। तो 2 टेबल बन गए। इसको चाहूं तो मैं बना भी सकता हूँ, चाहूं तो नहीं भी बना सकते, कोई जरूरी नहीं है। देन वी हैव कंप्यूटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने क्या देखा था, अनग्रुप पढ़ा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाया था कोई भी। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप। अब ग्रुप बना दिए यहाँ पे। टू अंडरस्टैंड दिस मेथड लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज यू हैव स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑन द क्लास टेस्ट इन हिस्ट्री। सपोज मेरे पास ये रो डेटा है जिसमें बता रखे हैं कि हिस्ट्री के अंदर बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मेरे को ऐसे, मैं ग्रुप में कैसे इसको बनाऊंगा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्या कर रखा है, अपने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि हम कैसे अनग्रुप डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये हमारी मर्जी होती है कि मैं कैसे भी कोई ग्रुप कैसे बना रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं जो हमारे लिए क्या होता है, ईजी होते हैं। ठीक है, अगर किसी को अपना दिमाग नहीं लगाना तो स्टेप्स फॉलो करे और भाई ग्रुप में उसको डिवाइड कर दे। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 7 नंबर किसके आए हैं, 10 नंबर किसके आए हैं, ऐसे करके एक एक नंबर से मैं लिख सकता हूँ ना। सपोज 7 नंबर यहाँ पे 2 लोगों के आए हैं, 10 नंबर 3 लोगों के आए हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन क्या है, ऐसे करके तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। क्यों लंबा हो जाएगा, यहाँ पे कितने हैं, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 लोग हैं, तो मेरे को यहाँ पे 30 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात, 1 2 3 ऐसे कर करके मेरे को 30 बार लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि बच्चों के नंबर 10 से लेके 20 तक कितने आए हैं, 20 से लेके 40 तक कितने आए हैं, ठीक है, 40 से 50 तक। अगर मैं ऐसा कर करके लिखूंगा तो मेरे लिए छोटा हो जाएगा ना ये तरीका। ये तरीका छोटा होएगा कि नहीं होएगा, बताओ। ये मेरा छोटा तरीका हो जाएगा कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कैटेगरी बना दी। ठीक है, तो ये मेरे लिए छोटा, मेरे को टेबल बनाना पड़ेगा, छोटी मेरे को क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सीधा मेरे को ग्रुप देखना पड़ेगा 10 से बीच में कितने हैं। ठीक है, जैसे 1 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4, 10 से कम वाले में देख लूंगा तो कितने हो गए, 4 हो गए, तो डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 4। ठीक है, फिर 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में देखूंगा कितने आ जाएंगे, उसमें वहां पे लिख दूंगा जैसे 5 है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, इजी मेथड हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। क्यों, अब अनग्रुप में हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, कम लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे 10 वैल्यूज थी, तो ठीक है अनग्रुप भी किया तो मेरे पास 10 ही वैल्यू है ना, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे 10 की जगह मेरे पास अगर बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स की जगह मैं बात करता 100 मार्क्स तक, कि एक नंबर किसके आए हैं, 2 कितने आए हैं, 3 कितने लोगों के आए हैं, 4 कितने लोग के, ऐसे करते करते अगर मैं 100 तक लिखूं तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 रो बनानी पड़ेंगी। ठीक है, 1 2 3 करके ऐसे 100 रो बनानी पड़ेगी, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास डाटा क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं ग्रुप मेथड का यूज करते हैं। उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, किस लिए, अपनी आसानी के लिए, और कुछ और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। और ग्रुप में हमें डिवाइड कैसे करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर कोई लॉ नहीं होता, कोई ऐसा कोई तरीका नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो रेंज यहाँ पे इन्होंने बताया, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, और स्टेप 3 में क्या करते हैं। तो ये आप अगर पढ़ोगे तो पढ़ लेना, लेकिन
इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई होती है कि हमें कैटेगरी कितनी बनानी है, रेंज होती है, रेंज इज टू बी फाउंड बिटवीन द लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट मार्क। ठीक है, हम रेंज देखते हैं कि कितनी कितनी रेंज है। हाईएस्ट मार्क कितने है 35, इन्होंने देख लिया शायद 35 हाईएस्ट है, और मिनिमम कितना है 1, मिनिमम यहाँ पे 1 है, तो रेंज कितनी आ जाएगी 34। 34 एक रेंज आ गई, इन्होंने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद इन्होंने देखा कि क्लास इंटरवल कितने बनाने, क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए, तो रेंज जो हमारी आती है ना हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ द कैटेगरी नीडेड। तो ये मैंने खुद से मैंने आइडिया लगाया कि यार मेरे पास कितने टोटल हैं, मेरे पास 30 लोग हैं, इसकी मैं कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, चलो मैं इसको ना 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दूं। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ये कोई मैं किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक बात बताओ, 30 लोग हैं, उसको अगर मैं 30 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा तो फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं सोचूंगा यार 5 6 7 8 कैटेगरी तक ही मैं इसको लपेट देता हूँ 30 लोगों को। ठीक है, तो सपोज मैंने 6 कैटेगरीज की बना दी, अपने हिसाब से 6 कैटेगरी बना दी, तो आई होता है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। जैसे यहाँ पे 10 से 20, तो यहाँ पे कितनी डिफरेंस है इनका, 10 नंबर, मतलब 10 से बीच के बीच में कितने नंबर है, 10 नंबर है। 20 से 40 में कितने हैं, 20 नंबर है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 20। तो ये मुझे डिफरेंस कितना रखना है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना रखना है, ये इस फॉर्मूले से पता चलता है। आई उसको बोलते हैं कि क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना है। तो आई कैलकुलेट कैसे करते हैं, रेंज को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो यहाँ पे रेंज हमारी आई थी 34 और कैटेगरीज कितनी आई थी 6, हमने मान ली थी। तो इसकी आई की वैल्यू कितनी है 5.7, मतलब मैं अप्रोक्स 6 का डिफरेंस मैं ले सकता हूँ। तो इस आंसर के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, मैं कैटेगरी बनाऊंगा 1 से लेके 6 तक, 7 से लेके 12 तक, 13 से लेके 18 तक। समझ में आया? ठीक है ना? हाँ जी हिमांशु। पूरा। ग्रेट। देन हमारा स्टेप 3, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन नाउ बी क्रिएटेड। अब हमारा ये क्लास इंटरवल मैंने बना दिया, सारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो द फॉलोइंग मेथड। मेथड यहाँ पे क्या होगा, मेथड बस यही है कि इस कैटेगरी में कितने टैलीज, मतलब 31 से लेके 36 मार्क्स के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 25 से 30 के बीच में कितने, 2 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 19 से लेकर 24 के में कितने लोग हैं, 4 5 10 11, तो यहाँ पे 11 लोग हो जाएंगे। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्लास कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल ली कि इस कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं। ये भी टोटल नंबर कितने 30 होंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया खत्म। इसके बाद आ जाता है हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इन्होंने क्या किया है, इनको और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने तो आपको बताया था ना, देखो वही चीज यहाँ पे लिखी होगी। सपोज करो कि मैंने क्या किया, एक डाटा है मेरे पास जो ये बता रहा है कि एज कितने किस पर्सन की कितनी एज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास यहाँ पे 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग मेरे पास यहाँ पे हैं, तो 10 लोगों की अलग अलग एज यहाँ पे बताई हुई है, 36 48 54 92 57 63, सब लोगों की एज यहाँ पे लिखी हुई है। तो सपोज करो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या पता चलता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। कौन से क्वेश्चंस, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स एज्ड लेस देन 45, 45 से कम एज वाले कितने लोग हैं। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स एज मोर देन 44, 44 से ज्यादा एज वाले कितने लोग हैं। एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर ओल्डर देन 65 इयर्स ओल्ड, जो 65 इयर्स ओल्ड से बड़े जो लोग हैं, जिनकी एज 65 से ज्यादा है, उनकी कितनी परसेंटेज है, या कितनी परसेंटेज है उनके पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, तो इन सब का आंसर हमें किससे पता चलता है, इन सब का आंसर हमें पता चलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यही बता रहा था ना, जैसे उस कैटेगरी के नीचे कितने लोग आते हैं, उस कैटेगरी के और ऊपर कितने लोग आते हैं, ये हमें आंसर मिलता है किससे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। और यहाँ पे यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स एज लेस देन 45। तो सपोज करो यहाँ पे 45 वाली मैंने कैटेगरी बना रखी है। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, यहाँ 45 है और यहाँ पे मान लो 48 है। तो यहाँ पे 45 से पूछ रहा है कि लेस देन कितने होंगे, तो लेस देन ऊपर जितने लोग आ जाएंगे वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोर देन पूछूंगा तो नीचे जितने लोग आ जाएंगे उसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब जो हमें आंसर हमें चाहिए होते हैं, जो वे कैलकुलेट करते हैं, तो किसकी हेल्प से होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से होता है। और तरीका कौन सा अप्लाई होता है, तरीका वही अप्लाई होता है, तरीका वही यूज करते हैं जो हमने पहले किया था। कहाँ किया था, ये वाला। ठीक है, सेम। देखो यहाँ पे इन्होंने फिर से यही बताया हुआ है
ये सब इन्होंने टेबल बना दी दोबारा, सेम जो डेटा हम अभी देख रहे थे, एज वाला, लोअर वैल्यूज, एज इन ईयर्स 85, 75, 65, 55, 45, 35। ये बोल रहा है अपर एज, एज इन ईयर्स, लोअर एज, अपर एज। इन्होंने शायद दो डेटा हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, लोअर एज, अपर एज। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। देन ओके, तो यहाँ पे एक कैटेगरी ली है इन्होंने, सॉरी इन्होंने ऐसे दिखा दिया, 85 से 94, 74 से 84, 65 से 74, 55 से 64, ये कैटेगरी बनाई हुई है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। कैटेगरी को मैं लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू क्लास इंटरवल्स में, जो वैल्यू इधर वाली होती है उसको हम बोल देते हैं लोअर वैल्यू, क्योंकि कम है, मैक्सिमम 94 है तो इसको हम बोल देंगे अपर वैल्यू, ये क्लास इंटरवल ही है। ठीक है, तो 75 से 84 के बीच में कितने आ रहे हैं, फिर 85 से 94। अभी कोई मुझे ये बताए कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है इसका मेथड कौन सा है, एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? एनीवन? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव है ना? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 65 से 74 है, देन यहाँ पे 75 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 74 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 75 वाला किसके अंदर आएगा, इस कैटेगरी के अंदर ही आएगा। यहाँ पे 74 तक आएगा, उसके बाद 75 वाला यहीं पे आएगा। इंक्लूसिव है, यहाँ पे मैं किसी भी नंबर को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा इंक्लूसिव मेथड ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये मैंने टेबल बना दी। फिर फ्रीक्वेंसी की भाई 85 से 94 के बीच में जो एज है वो कितने लोग हैं, एक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल कितने लोग हैं, 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इससे नीचे कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे ना, है ना। 10 में से जो सबसे ऊपर है, जो सबसे बड़ा है, सबसे ओल्ड है, उसकी कितनी इस एज के अंदर आ रहा है, कितने लोग हैं, एक लोग हैं। तो उस और टोटल लोग कितने हैं कंपनी में, 10 लोग हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो इससे नीचे कितने लोग होंगे, अगर मैं पूछूं कि 85 एज से कम एज वाले कितने लोग हैं, तो सीधा आंसर आ जाएगा ना 9। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आउट ऑफ 10 एक ही सिर्फ पर्सन है जो इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। तो 85 से कम एज वाले कितने लोग होंगे भाई, 10 में से एक माइनस कर दो ना, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं, तो यहाँ पे 75 से लेके 84 तक के कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और टोटल यहाँ पे कितने, 9 हैं, क्योंकि एक तो ऊपर ही चला गया, उस कैटेगरी में चला गया, उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई 75 से कम एज वाले कितने लोग हैं, तो 9 में से मैं 2 कर दूंगा और कितने माइनस कर दूंगा, कितने बच जाएंगे, 7। ठीक है, क्योंकि भाई 9 थे मेरे पास, यहाँ पे एक के तो वैसे ही ज्यादा है, 75 से ज्यादा है ना, मैं कम की बात कर रहा हूँ कि 75 से कम एज वाले कितने लोग हैं। तो ये सब क्या है, कम वाले हैं ना इससे। तो मेरे पास यहाँ पे 9 लोग थे, 9 में से दो लोग तो इसी कैटेगरी में आते, तो कितने बच गए, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 बच गए। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो 2 + 2 + 2 1, ये कितने हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएंगे जो इस कैटेगरी से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं 75 से ज्यादा एज वाले कितने लोग हैं, तो ज्यादा एज वाले यहाँ 9 तो यहाँ पे ही है, तो कितने बच गए, एक ही तो बच गया। आउट ऑफ 10 9 तो यहाँ इससे नीचे वाले लोग हैं, तो ऊपर क्या है, एक ही तो है। तो ये सब आंसर हमें किससे पता चल रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता चल रहा है ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज, थर्ड वन हमारी परसेंटेज बताता है कि यहाँ पे एक है, 10 में से एक लोग है तो कितने परसेंट है, 10%। 2 लोग है तो कितने हो जाएंगे, 20%। 2 लोग 20%, एक है तो 10%। समझ में आ गया, ये सिर्फ परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 10 एक पर्सन है, तो 10 में से एक बंदा कितना परसेंट होगा, 10%। दो लोग हैं तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 10 में से 20%। ये सिर्फ परसेंटेज हमें बता रहा है। कम्युलेटिव परसेंटेज कि वही वाले कम्युनिटी, मतलब इसी चीज को मैं परसेंटेज में शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 10 के 10 लोग इस कैटेगरी में आते तो 100% हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 9 लोग थे तो कितने हो जाएंगे, 90%। 7 लोग हैं तो कितने हो जाएंगे, 70%। 5 लोग हैं तो कितने हो जाएंगे, 50%। 3 है तो 30%, एक है तो 10%। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। क्लियर है हिमांशु? ओके, so the next topic we have is percentile and percentile ranks। ठीक है, तो परसेंटाइल और परसेंटाइल रैंक्स अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिसको पता है वो मुझे बता दो एक बार, परसेंटाइल किसे पता है और परसेंटाइल रैंक किसे बोलते हैं, एनीवन? परसेंटाइल तो परसेंटेज हो गया स्टूडेंट की परसेंटेज, और परसेंटाइल रैंक मतलब उसकी रैंक अकॉर्डिंगली होगी ना परसेंट के। एग्जैक्टली,
तो सपोज कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं, सपोज आजकल एग्जामिनेशन इसी बेसिस पे होती है, ठीक है, कि मैंने कोई बैंक का एग्जाम दिया है और मेरे को मेरे परसेंटाइल मार्क्स में मेरे रिजल्ट दिया है इन्होंने। परसेंटाइल का मतलब होता है कि सपोज कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 में से 90 मार्क्स आए हैं। अब मेरे तो 90 मार्क्स आ गए, लेकिन परसेंटाइल क्या बताता है? परसेंटाइल ये बताता है कि मेरे 90 मार्क्स आए हैं, तो मेरे से कितने परसेंट लोग मेरे से नीचे हैं, ठीक है। यहाँ ये आंसर जहां से मुझे मिलता है उसको हम बोलते हैं परसेंटाइल, ठीक है, कि 90 नंबर तो मेरे आ गए, ठीक है। अब मेरे क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और अब मेरे 90 नंबर आ गए और मैं सबसे टॉप किया मैंने सपोज, ठीक है, तो मेरे परसेंटाइल कितने हो जाएंगे? 100% बच्चा 100 हो जाएगा, क्योंकि मेरे क्या है, पूरे मार्क्स मेरे आए हैं, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मेरे से ऊपर कोई स्टूडेंट है ही नहीं, मैंने तो टॉप किया है, मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स ही मेरे आए हैं। तो जो ये बताता है ना कि भाई ये जो कैटेगरी है इसके नीचे इतने परसेंटेज लोग हैं, इतने परसेंट लोग हैं, वो हम बोल देते हैं परसेंटाइल, ठीक है। परसेंटाइल रैंक क्या होता है? परसेंटाइल रैंक वो बोलता है कि जो रैंक बताता है, ठीक है, कि कौन सी पोजीशन है उसकी, ठीक है, जो पोजीशन बताएगा। रैंक भी है तो हम ऐसे ही बताते हैं ना, रैंक भी तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, परसेंटाइल से ही रैंक बनी है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये 90 नंबर आए हैं और इसके नीचे सारे लोग इससे नीचे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि मैं टॉपर 1 हूँ, ठीक है। अब सेकंड अगर मान लो किसी के 85 नंबर आए हैं, 85 उसकी परसेंटेज, अगर परसेंटाइल है उसकी 85 परसेंटाइल है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे से नीचे कितने लोग हैं। तो अगर सपोज कि 10 लोग हैं और मेरे से नीचे अगर 8 लोग हैं, ठीक है, तो मेरी पोजीशन कितनी हो जाएगी? सेकंड पोजीशन हो जाएगी। तो जो परसेंटेज बताएगा कि मेरे से नीचे कितने परसेंट लोग हैं, तो वो हो जाएगी परसेंटाइल। और जो रैंक बताएगा कि हाँ मेरी कौन सी रैंक है या मेरे से नीचे कितने लोग हैं, तो वो हो जाएंगे परसेंटाइल रैंक। यही होता है हमारा बेसिक डिफरेंस इनके बीच में। तो परसेंटाइल मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। ए परसेंटाइल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ पॉइंट ऑन द स्कोर स्केल बिलो विच ए गिवन परसेंट ऑफ कॉज लाई। ठीक है, यही बता रहा है ना ये, कि वो पॉइंट स्केल का, वो पॉइंट स्कोर का, वो पॉइंट जिसकी जो बताए कि उसके बिलो विच इज अ गिवन परसेंट ऑफ केसेस लाई, कि वो पॉइंट जिसके नीचे के परसेंटेज हमें बताएगा वो हम बोल देंगे परसेंटाइल। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 90th परसेंटाइल, ठीक है, it means 90% of the students have scored below him or her, or if the students obtain 84 percentile, that means 84% of the students lie below him or her। ठीक है, कि जैसे किसी के 90% अगर मैं बोल रहा हूँ ना, 90 परसेंटाइल आए हैं किसी के, that means 90% of students lie below me। ठीक है, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ किसी के 84 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स 84% लोग उससे नीचे हैं, उससे कम नंबर आए हैं। 84% वाले बच्चों के, 84% जो बच्चे हैं उनके उससे कम नंबर आए हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या बताता है? परसेंटाइल बताता है। परसेंटाइल हमेशा परसेंटेज बताएगा, ये भी याद रखना। अब हमारे यहाँ पे क्या एडवांटेज बता रहा है? इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सब्जेक्ट एप्लीकेबल होता है। इट कैन बी रीडली अंडरस्टूड एंड आर इजी टू कंप्यूट इवन बाय अनट्रेन्ड पर्सन। तो ये क्या होता है? बहुत आसान होता है समझना। आसान ही हो गया ना, किसी को ये बताने के लिए कि तेरे कितने नंबर आए हैं, तेरे मेरे तो यार 50 नंबर आए हैं, चलो ठीक है। अब ये मैं इसी बताता हूँ कि ऐसे यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, कि यहाँ पे क्या इजी टू कंप्यूट है और इजी टू अंडरस्टैंड है। क्यों? सपोज अगर मेरे 90 नंबर आए हैं, सपोज 100 में से मेरे 90 नंबर आए हैं, तो मैंने किसी को बताया कि मेरे ना 90 नंबर आए हैं 100 में से, तो दूसरा आदमी सोचेगा हाँ यार ये तो इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि मेरे 90 नंबर तो आए हैं, लेकिन मेरे तो क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं, सबके नंबर तो 95, 96, 97 आए हैं, मेरे तो 90 नंबर आए हैं, मेरे तो सबसे कम नंबर है। तो ये क्या हुआ? ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं हुई ना। दूसरे वाला आदमी जिसने पूछा था उसको तो मिसअंडरस्टैंड हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जितने भी मेरे नंबर आए उसको छोड़, लेकिन मेरे क्लास में 90% बच्चों से ऊपर हूं मैं, 90% बच्चे मेरी क्लास में मेरे से नीचे हैं, तो ये क्या क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई 90% बच्चों से ऊपर है। ये क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोला इट कैन बी रीडली अंडरस्टूड एंड आर इजी टू कंप्यूट इवन बाय अनट्रेन्ड पर्सन। इट इज सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ टेस्ट। ये कुछ एडवांटेज हैं। ड्रॉबैक्स क्या हो जाते हैं? परसेंटाइल शो इंडिविजुअल रिलेटिव पोजीशन। तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल रिलेटिव पोजीशन बताता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। अब वही है, सब जगह हर चीज तो नहीं बता पाएगी ना। ये क्या है? रिलेटिव स्कोर बताता, पोजीशन बता देता है रिलेटिव, लेकिन इंडिविजुअल का स्कोर नहीं बता पाता। परसेंटाइल स्कोर हैव इनइक्वालिटी ऑफ द यूनिट, दिस इज मेजर ड्रॉबैक। तो क्या कहता है? ये यूनिट्स होती हैं, इनइक्वालिटीज होती हैं, तो ये सब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हो गई परसेंटाइल्स की। अब यहाँ पे आ जाता है कि हम परसेंटाइल निकालेंगे कैसे। परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
परसेंटाइल कोई भी टेबल अगर हमारे पास गिवन है, जैसे ये टेबल हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हम परसेंटाइल कैसे निकालेंगे? परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है ये, P का हो जाएगा परसेंटाइल, L यहाँ पे हो जाएगा द लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास एंड द क्लास वेयर द परसेंटाइल में लाए। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो लोअर लिमिट, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, सपोज मेरे को इस क्लास का परसेंटाइल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे 15 जो हो जाएगी ना, लोअर लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी? मेरी एल हो जाएगी, प्लस पी क्या है? स्मॉल पी क्या है? नंबर ऑफ परसेंटाइल फॉर विच कैलकुलेशन इज टू बी कैरिड। ठीक है, कि नंबर ऑफ परसेंटाइल, सपोज मुझे 30th परसेंटाइल निकालनी है, या मुझे 50 परसेंटाइल निकालनी है, मुझे 90 परसेंटाइल निकालनी है, तो अगर 90 परसेंटाइल निकालनी है तो पी क्या हो जाएगा मेरा? पी हो जाएगा 90, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 90। एन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कि कितने लोग हैं मेरे पास टोटल, मेरे डेटा में कितने लोग हैं टोटल, ये हमारा मेरा हो जाएगा एन। इसके बाद 100 माइनस एफ, एफ क्या हो जाएगा? जो कैपिटल एफ है वो हो जाएगा टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट एग्जिस्ट बिफोर द परसेंटाइल क्लास। तो जिस परसेंटाइल क्लास को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं उससे नीचे जितने भी लोग होंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट बिफोर बिफोर दैट परसेंटाइल, उस क्लास से पहले जितने लोग होंगे, जितनी फ्रीक्वेंसीज होगी, वो मेरा हो जाएगा कैपिटल एफ। स्मॉल एफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास, जिस क्लास के मुझे परसेंटाइल निकालनी है उसके अंदर कितने लोग आते हैं, वो हो जाएगा स्मॉल एफ। आई क्या हो जाएगा? द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, पीछे देखा था ना ऊपर, आई आई क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे है 25 से 29, तो कितने हो जाएंगे? 25, 26, 27, 28, 29, तो यहाँ पे क्या है? 5 लोग हैं, 5 इंटरवल यहाँ पे आ जाए, है ना? तो ये हो जाएगा मेरा आई, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो इसको, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको अगर जब एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज मुझे फर्स्ट परसेंटाइल निकालनी है, फर्स्ट परसेंटाइल कौन है? तो पी एल एल एन, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अब मैं पी को हटा दूं, प्लस डिवाइड बाय 100 माइनस एफ, एफ इनटू आई। तो ये सब इन्होंने यहाँ पे पुट करके रखी है। जैसे 75 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे स्मॉल पी की जगह क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा, और ये सब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे, इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, सपोज मुझे 30th परसेंटाइल निकालनी है, 30th परसेंटाइल निकालनी है। 30th परसेंटाइल का मतलब क्या हो जाएगा? 30th परसेंटाइल मतलब कि 30% लोग उस कैटेगरी के उससे नीचे आ रहे हैं। जैसे सपोज कि हमें 30th परसेंटाइल निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इंडिकेट्स दैट 30% ऑफ द स्कोर्स लाई बिलो दिस पॉइंट। ठीक है, कि मतलब 30% लोग उस पॉइंट से नीचे आ रहे हैं, उसी का मतलब है ना 30th परसेंटाइल। मतलब 30th परसेंटाइल अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि 30% लोगों से ऊपर है वो वैल्यू, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि 30% लोग उस वैल्यू से नीचे हैं, यही मैं कह सकता हूँ ना। तो इसको मैं एन कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर मुझे पी अगर 30 निकालना है, अगर मुझे 30th परसेंटाइल निकालना है, मतलब 30% लोग क्या होंगे? उससे नीचे होंगे। तो 30% अगर को मैं कन्वर्ट करूंगा नंबर में, तो क्या हो जाएगा? 30 इन बाई इंटू 30/100। ठीक है, इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, तो इससे जो आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 900। ये कैलकुलेट 3 इंटू 3 9, तो 9 क्या हो जाएगा मेरा? 9 मेरा यहाँ पे हो जाएगा नाइन्थ स्कोर। मुझे क्या करना पड़ेगा? नाइन्थ स्कोर को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 30th परसेंटाइल निकालनी है, 30 मतलब 30% लोग उससे नीचे आ रहे हैं, तो कौन सी वैल्यू है जिसके नीचे 30% लोग आ रहे हैं? वो वैल्यू है 9। यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमें वैल्यू बताएगा कि ये वैल्यू, नाइन्थ वैल्यू जो है, नाइन्थ स्कोर जो है, वो वैसा स्कोर है जिसके नीचे 30% लोग लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइन्थ स्कोर यहाँ पे कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पे देखो, सबसे नीचे कैटेगरी कौन से? 0 से 4, ये 5 से 9, तो 7 लोग तो यहाँ पे ही हैं। ठीक है, और 9 कहाँ पे लाई कर रहा है? 9 लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 9 लाई कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम्हें वैसे अगर जनरली अगर तुम देखोगे तो 30 लोग हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक कितने लोग हैं? 5, 9, 15, 19, 4, 23, यहाँ तक कितने लोग हो गए? 23। ठीक है, और नीचे आ गए 7। तो तुम एक बार देखो, दिमाग लगा के देखो कि 23 तो यहीं तक ही हो गए, और या फिर अगर ऊपर तक की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएंगे 19। ठीक है, तो 19 तो यहाँ तक है, नीचे कितने लोग बच गए? नीचे लोग बच जाएंगे 11। ठीक है, तो 11 कितने लोग हो जाए? अप्रोक्स 30% नहीं है इसका ये, 30 का 30 टोटल नंबर है, और यहाँ पे 11 बच्चे यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, 7 और 4 11, तो अप्रोक्स इसका 30% है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें वैल्यू पता करनी है, ये तो पता चल गया मुझे 30th परसेंटाइल निकालनी है। अब 30 परसेंटाइल कहाँ पे लाई कर रही है? वो लाई कर रही है यहाँ पे, क्योंकि ये वो वैल्यू है जहाँ पे 30% लोग उसके नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9th स्कोर। मुझे 9th स्कोर यहाँ पे देखना है, 9th स्कोर मेरा आ रहा है 5 to 9 वाली कैटेगरी में। ठीक है, मेरे कुछ यहाँ से ये पता चल गया। तो अब मुझे एल की वैल्यू निकालनी है, एल मुझे निकालना है लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट मुझे निकालनी है। लोअर लिमिट हम कैसे निकालते हैं? दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास
or the class where the percentile may fall is identified. In this case of example, it will be 4.5. That is the lower limit of the class interval 5 to 9. 5 to 9 में कितना है? 5 to 9 में कितनी वैल्यूज है? 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। और हमने इसमें क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है ना, जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट को डिवाइड कर देते हैं 2 से, 9 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.5, ठीक है। तो अगर मुझे एल की वैल्यू अगर इस कैटेगरी में निकालनी है, 20 से 24 वाली वैल्यू कैटेगरी में निकालनी है, तो मैं अपर लिमिट लूंगा 24 और डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितनी हो जाएगी? 12। तो मेरी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वहां पे 12 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4.5, क्योंकि मेरे पास कौन सी कैटेगरी है? 5 to 9 वाली कैटेगरी है। तो 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरी आ जाएगी 4.5। तो यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई। 30th मुझे निकालनी है, 30th परसेंटाइल निकालनी है, तो यहाँ पे स्मॉल पी की जगह 30 आ जाएगा। टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 30 स्टूडेंट हैं, डिवाइड कर देंगे 100 से। एफ क्या है? एफ मैंने बताया था जो उससे नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो उससे नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, इसके नीचे वाली कैटेगरी में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7। डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी, जो स्मॉल एफ होगा वो क्या बताएगा? उस कैटेगरी का बताएगा कि उस कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं, जिस कैटेगरी का मैं परसेंटाइल निकाल रहा हूँ। तो इस कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं? इस कैटेगरी में है 4। तो स्मॉल एफ की जगह क्या आ जाएगी? 4 इंटू आई क्या है? आई मैंने बताया था कि क्लास इंटरवल में कितनी वैल्यूज हैं? 5 to 9 के बीच में 5 नंबर है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना आ जाएगा? 5। तो अगर यही मुझे फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रखने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो मुझे बता देगा परसेंटाइल, ठीक है। ऐसे हमें क्या कैलकुलेट करते हैं? परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करते हैं। परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? परसेंटाइल रैंक 100 माइनस 100। आर क्या है? यहाँ पे हमारा आर है द रैंक पोजीशन ऑफ द पर्सन फॉर होम द परसेंटाइल रैंक इज टू बी कंप्यूटेड, कि उस बंदे की रैंक, ठीक है, जिसका हम परसेंटाइल रैंक निकालना चाहते हैं। यहाँ पे आर में की जगह वो आएगा 50 डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटाइल रैंक निकालने का फॉर्मूला। भाई अगर मुझे बता देना, मुझे शायद लग रहा होगा कि बच्चों को ये कंफ्यूज आ रहा होगा। जो बच्चे अगर समझ सकते हैं समझ लेना, अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अलग से क्लास लूंगा उनके लिए, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं अलग से क्लास लेकर उनको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, कैसे फॉर्मूला हमने बनाया है, ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला हमने बनाया है और कैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो मैं अलग से इसके लिए लूंगा, क्योंकि अभी तो इतना टाइम है नहीं कि मैं पूरा डिटेल में चला जाऊं, आपको ये भी बताऊं कि फॉर्मूला कैसे बनाया है। तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो जिसको समझ में आ रहा है दैट इज गुड इनफ। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो मुझे बता देना, उनको मैं अलग से ड्राइव करके बता दूंगा। तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला हो गया, परसेंटाइल रैंक का फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हम यूज करेंगे, जैसे ये है हमारे पास एक टेस्ट दिया हुआ है इन्होंने, 88 मार्क्स, जिसके सबसे ज्यादा 88 मार्क्स 1 रैंक, 87 मार्क्स वाले की 2 रैंक। इसको क्या मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं ये मैंने क्या है साइकोलॉजी टेस्ट मैंने लिया था 10 बच्चों का, उनके इतने इतने मार्क्स आए हैं। 88 मार्क्स जिसके आए हैं 1 रैंक, 87 जिसके आए हैं 2 रैंक, 87 3 रैंक। ये मैंने खुद से रैंक निकाल लिया, ठीक है, कि अलग अलग नंबर आए यहाँ पे। ये देखना कि यहाँ पे अनग्रुप है ये, क्योंकि सबके अलग अलग नंबर आए, किसी के भी एक जैसे नंबर नहीं आए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 88 मार्क्स। सबसे ज्यादा नंबर किसके आए? सबसे ज्यादा नंबर आए 88, तो उसकी रैंक 1 हो जाएगी। उसके बाद 87 किसी के नंबर है, उसकी रैंक 2 हो जाएगी। उसके बाद 78 नंबर आए किसी, उसकी रैंक 3 हो जाएगी। उसके बाद 67 आए, उसके बाद 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं परसेंटाइल रैंक निकालने में। तो 100 माइनस में 100 आर, ये क्या हमारा फॉर्मूला है। आर क्या हो जाएगी? सपोज, हाँ, नाउ वी विल नाउ फाइंड परसेंटाइल रैंक ऑफ द मार्क 67। जिसके 67 मार्क्स आए हैं उसके में परसेंटाइल रैंक निकालनी है। ये तो रैंक मेरी नॉर्मल रैंक है, जो मैंने खुद से रैंक दी है कि हाँ ये चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन मुझे परसेंटाइल रैंक निकालनी है। परसेंटाइल रैंक में हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि इससे नीचे कितने लोग हैं, ठीक है। परसेंटाइल रैंक में हमें ये पता चलेगा। अभी तो हमने नॉर्मल रैंक है कि हाँ ये चौथे नंबर पे है, 67 नंबर आए हैं और ये 4th नंबर पे लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 100 माइनस 100 आर क्या हो जाएगी हमारी रैंक? कितनी रैंक थी उसकी? 4। मेरे हिसाब से उसकी रैंक थी 4 माइनस 50, टोटल नंबर कितने हैं? 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 65, ठीक है। तो परसेंटाइल रैंक कितनी आ जाएगी? 65 रैंक आ जाएगी उसकी, जिसके नंबर 67 आए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। देन वी हैव अ कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटाइल रैंक ऑफ ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में कैसे निकालेंगे? ये ग्रुप डाटा हो गया, सब चीज सेम है। इतने 90 से लेकर 99 तक एक बच्चा है, 80 से 89 तक 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 70 79 तक 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो ये भी सेम ही है। इसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, विदाउट फॉर्मूला देन वी हैव विद फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला तरीका है, मैं आपको विद फॉर्मूला ही बताऊंगा कि विदाउट फॉर्मूला में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई सीखना चाहे दे कैन टेक्स्ट मी पर्सनली एंड आई विल टेक अ डिफरेंट क्लास फॉर देम, जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये सब चीजें सीखने के लिए। अदरवाइज वी कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा। अब ये यहाँ पे याद रखना, जहाँ पे अनग्रुप होगा ना, जहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं होंगे, तब हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे देन वी यूज द डिफरेंट फॉर्मूला विच इज दिस। ये हमारा हो जाएगा ग्रुप डाटा के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, सेम हमारे यहाँ पे चीजें, यहाँ पे डिफरेंट क्या आया, कैपिटल एफ एक्स एल आई स्मॉल एफ, तो ये हमने पढ़ा ही हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक्स नया आया है। एक्स क्या है, द मार्क फॉर विच द परसेंटाइल रैंक इज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, कि जो मार्क्स आए हैं जिसके हम परसेंटाइल निकालना चाह रहे हैं, उसके जितने मार्क्स आए हैं वो हम यहाँ पे क्या है, एक्स से यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी सब चीजें सेम, आई साइज ऑफ द इंटरवल, एल द लोअर लिमिट, x frequency of the class interval consist of x and total number of cases in the distribution, total number कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया फिर भी, क्योंकि ये क्या है ना, ऐसे मैं स्क्रीन शेयर करके भी नहीं बता सकता, या तो मैं क्या करूंगा फर्दर क्लासेस में नोट पैड वगैरह खोल के या वर्ड पैड में आई विल ट्राई टू टेक एक्सेस फ्रॉम देन एंड कुछ अलग क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे कैसे हम टेबल्स को सॉल्व करते हैं, या फिर इस यूनिट के बाद में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है विद दिस फॉर्मूलाज। तो वहां पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अभी आप खुद से देख लेना, अभी यहाँ पे पता ही चल गया ना कि यहाँ पे देखो याद ही करना तुम्हें ये फॉर्मूला। ये हो गया शॉर्ट एंड लेमन मेथड। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, क्या हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मेंटल शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, जिसको क्या बोला था मैं भूल गया, क्या वर्ड था उसका, सॉरी, जो भी है। तो यहाँ पे हम परसेंटाइल रैंक निकालेंगे ग्रुप डेटा में इस फॉर्मूले के यूज से। तो यहाँ पे हम यहाँ पे निकल जाएंगे, यूज कर लेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, नाउ व्हाट वी डू, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स, देन विल कम बैक एंड डू द रिमेनिंग कोर्स। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अलग अलग टाइप के ग्राफ बताए हुए हैं, कैसे कैसे हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं डेटास के, कैसे कैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, पॉलीग्राम बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, ये सब हमें यहाँ पे बताया गया है। तो एक काम करो, ब्रेक ले लो 10 से 15 मिनट का, देन वी विल कम बैक एंड विल complete the remaining portion of this unit. Okay, any doubts ठीक till है now, सर। ओके। anyone? Okay guys, then go have a break for 10 to 15 minutes and then rejoin the session. Thank you.